So hello everyone. I'm Maninder Kaur. I'm the National Coordinator at India Alternative Care Network, IACN. At the back end is Deborah Patel, IACN's Communications Associate, who will be supporting us for this session. I'm very excited to have you all for this webinar on locating foster care in the realm of child protection and alternative care, organized by IACN in collaboration with SERI, FCS, and GCT. We are thankful to you for posting your questions in the registration form, which really helped our speakers to structure their presentations. So throughout the session, if you have any queries, please put them in the chat box. This session will be recorded and the recordings will be shared with you. So before I begin, I would like to give a brief introduction to IACN. It is a collective dedicated to promoting the exchange of learning and dissemination of knowledge on issues related to child protection, family strengthening, and alternative care for children. If you wish to learn more about IACN, please check our website. You can also join the network and become IACN's member. Today for this webinar, we have with us 5 experts with a rich experience of working in the domain of foster care. To give you an outline of this webinar will include introduction to foster care, process involving foster care, challenges and promising practices, stakeholders' perspectives, and case stories. This will be followed by question-answer round. So, what is foster care? Why do we need foster care for children? Where can we locate it in the legal framework? Let us delve into these aspects with Mr. Devashish Mishra, our first speaker. Devashish is the National Child Protection Consultant for SERI, where he manages SERI's India program and who has over 11 years of extensive experience in training on issues such as child protection, child development, trauma, etc. in both urban and rural setups. While working on alternative care, he has been instrumental in the induction of foster care programs and providing on-site technical support to the DCPUs, CWCs, CACIs, and other child protection functionaries. His role has enabled him to work in various states across India. In foster care program, he has been a member of State Drafting Committee of Rajasthan, State Drafting Committee of Rajasthan and Maharashtra. Over to you, Devashish. Thanks, Maninder. Hi, everyone. After long preparation and long time, now we are on floor, and thanks to everyone for your hard work and making this program possible. As we decided, because our lots of participants from Hindi speaking belt, so we decided to run this session mostly in Hindi language. So I'm so sorry about those person who were looking only in English. So I'm so sorry about it, but we will try to manage in both languages, but mostly we will go with Hindi language, as our most of participants understand only Hindi. So, but if you have any question, you can ask us, and we will try to give response in chat, or maybe later on, or maybe in session if it could be possible. So that is my request to all of you. Okay, so जैसा महेंद्र ने बताया कि अभी आज के सेशन में हम लोग 5 लोग हैं, और उन्होंने कुछ मुझे भी जिम्मेदारी दे दी है उनमें से कि मैं क्या क्या चीजें आपसे बातचीत करूंगा, क्या आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सेशन को मैं शुरू करूं से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा कि देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको कुछ ऐसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं जैसा समझ रहा हूं कि हम में से कुछ ऐसे होंगे जिनको फॉस्टर केयर पे बहुत अच्छी जानकारी होगी, बहुत बेहतर जानकारी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ी जानकारी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सुना हो, या एकदम बिगिनिंग से फॉस्टर केयर को समझना चाहते हो। तो हम लोगों ने इसको ऐसे डिजाइन किया कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, और जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मेरा सेशन स्पेशली ओपन रहेगा कि आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो मैं ड्यूरिंग सेशन भी आपके क्वेश्चंस लेता रहूंगा, अगर वो रिलेवेंट होगा तो, है ना।
और कोशिश ये रहेगी कि हम जो अभी 1.5 घंटे के लिए हम सब अपना कीमती समय लगाकर यहाँ पर आए हैं, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, और हम जितना ज्यादा इसको समझ सकें, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें, वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से जो हमारे हम रिसोर्स पर्सन, हम तो कोशिश करेंगे, और आपकी तरफ से भी मैं ये चाहूंगा कि पूरा टेंशन बना रहे, और अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज पूछिए। क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए नहीं कर पाएंगे, तो फिर थोड़ा सा हम सबको भी दुख होगा कि हमने समय लगाया और आपका भी समय उसमें एज वेल एज उतना ही आप टाइम दे रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा अटेंटिव होकर के, और हम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब्जेक्ट को आपको जो हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ हम उसको फुलफिल कर सकें, वो हम कोशिश करेंगे। ओके, सो बात है फॉस्टर केयर की। फॉस्टर केयर की बात जब हम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में वो सारी सर्विसेज भी दिमाग में आती हैं जो पहले से एग्जिस्ट हैं, या फिर वो इंट्रोड्यूस की गई भी हाल ही के वर्षों में। जब भी हम फॉस्टर केयर के बारे में कहीं जानते हैं, कहीं सुनते हैं, तो अलग अलग तरह की सूचनाएं आती हैं, अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। स्पेशली अगर इंडिया में देखें हम, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग न्यूज हमें अक्सर मिलती रहती है। और अगर फॉरेन के हिसाब से हम देखें, तो कई बार तो अगर हम ज्यादा स्टडी करते हैं तो हमें और कंफ्यूजन होता है कि उनका जो मॉडल है, हमारा इंडिया में जो मॉडल है, वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। बट लेकिन अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, जो फॉस्टर केयर प्रोग्राम है, उसको जानने, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज दी हुई हैं। वो भी हमें उतनी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें वो स्ट्रक्चर की समझ नहीं होगी, तो हम उसके लिए फॉस्टर केयर की जो नीड है, जो स्पेस है ना, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए पहले एक स्टेप थोड़ा पीछे जाएंगे हम, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओवरऑल हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन का सिस्टम है, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कह रहा है, जुवेनाइल जस्टिस रूल कह रहा है, जो हमारी मॉडल गाइडलाइंस कह रही हैं, जो हमारे अलग अलग रूल्स गाइडलाइंस कह रहे हैं, वो आखिर बात किस चीज की कर रहे हैं, और उसमें फॉस्टर केयर का क्या बेसिक रोल क्या है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो कई बार ये ऐसा दिखाया जाता है कि ये सीसीआई के अगेंस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि ये एडॉप्शन का बैकडोर है। तो इस तरह से एक एक पूरी जानकारी ना होने की वजह से ये एक धारणा बन जाती है, और ये मैसेज चला जाता है कि ये ऐसे हो सकता है। बट एज ए एक्सपर्ट 10 सालों से हम इसमें काम कर रहे हैं, और गाइडलाइन और रूल्स पे हम साथ में हमने शुरुआत की थी इस पे काम करना। तो हम ये समझते हैं और हम जानते भी हैं कि ये बहुत ही एक अलग सर्विस है, और इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को जब हम समझेंगे, तो हम इस प्रोग्राम को भी आसानी से समझ लेंगे। अब बात ये आती है कि फॉस्टर केयर की जो रिक्वायरमेंट है या जो नीड है, वो क्या है। तो हम जानते हैं कि जो बच्चे हमारे अगर हमें इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करूं, देन वी कैन से दैट सीसीआई, कोई बच्चा सीएनसीपी कैटेगरी का आता है, तो जनरली हम उसको, फिर क्या होता है कि उसको हम सीसीआई में भेजते हैं, है ना। यही तो हम सभी आसपास अपने जिलों में देखते हैं कि जो बच्चे सीएनसीपी कैटेगरी का है, तो उनको हम पहले सीसीआई में भेजते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उनको एडॉप्शन में भेजने की, और या फिर कोई दूसरा वहाँ उस जिले में उधर कोई ऑप्शन है, तो वहां पर उसको भेजने की कोशिश करते हैं। बट सवाल ये आता है कि फॉस्टर केयर क्यों और कैसे। तो जब हम इस सवाल को देखते हैं, तो अगर इसी में स्ट्रक्चर में हम देखें, जब इस चीज को, कि सीसीआई हमें एक तरफ दिख रहा है, एडॉप्शन की सर्विस हमें दिख रही है, आफ्टर केयर की सर्विस हमें दिख रही है, तो अलग अलग बहुत सी सर्विसेज हमें दिखती रहती हैं। उन सर्विसेज की बात करें, तो फॉस्टर केयर उन बच्चों के लिए है। सबसे पहले तो बात यह है कि फैमिली बेस्ड केयर, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो फैमिली बेस्ड केयर सर्विसेज को प्रमोट करता है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता है कि जो भी बच्चे सीएनसीपी कैटेगरी से गवर्नमेंट के सामने या सीडब्ल्यूसी के सामने आए, तो वो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो फैमिली बेस्ड केयर होनी चाहिए। इसी को अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के एक्ट में देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन शुड बी लास्ट रिसोर्ट, है ना। तो वहां पे इंस्टीट्यूशन को सबसे लास्ट रिसोर्ट की बात कही गई, यानी कोई बच्चा जब किसी सीडब्ल्यूसी के सामने आए, तो वो सबसे आखिरी जो उपाय होना चाहिए, वो सीसीआई होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट देखें हम, तो भी लगता है कि फैमिली
फैमिली बेस्ड केयर को हमें प्राथमिकता देनी है। और जो फैमिली बेस्ड केयर की प्राथमिकता की हम बात करते हैं तो फॉस्टर केयर उसका एक प्रोग्राम है, उसकी एक सर्विस है। तो ऐसे देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा एक्ट ही इसकी प्रेफरेंस दे रहा है, इसको प्रायोरिटी दे रहा है कि हमको फैमिली बेस्ड केयर सर्विस में ही बच्चों को भेजने की प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको फैमिली बेस्ड केयर प्रोग्राम को और अच्छे समझना या जानना है तो उसके लिए अलग से सेशन के लिए आप हम लोग कभी किसी प्लेटफॉर्म पे मिलकर बात कर सकते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट अगर हम केवल इतनी बात करें कि फैमिली बेस्ड केयर की जो जो सर्विसेज जो कंपोनेंट हैं, जो जो प्रोग्राम हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एक फॉस्टर केयर हो गया। अब बात ये आती है कि जब सीसीआई में हम बच्चों को भेजते हैं तो क्या होता है कि वो कई बार तो कुछ समय के लिए जब उनकी जरूरत होती है वो जाते हैं, या कई बार लॉन्ग टर्म के लिए चले जाते हैं। और ऐसा जब लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो वहां पर ये भी चीज चेक की जाती है कि वो क्या लीगल फ्री की कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, हम अपने अपने आसपास जरूर देख सकते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सीसीआई में लंबे समय से रह रहे हैं। और उनका भी अगर हम एडॉप्शन के हिसाब से देखें तो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो लीगल फ्री है या तो लीगल फ्री नहीं है। अगर लीगल फ्री हैं तो वो एडॉप्शन के प्रोसेस में चले जाते हैं, और अगर लीगल फ्री नहीं है तो वो मजबूर हो जाते हैं सीसीआई में रहने के लिए। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो गैप आ रहा है वो कहाँ गैप बन रहा है? गैप वही बन रहा है कि अगर कोई बच्चा कहीं कोई वल्नरेबल बच्चा है जो सीएनसीपी कैटेगरी का है, उसके लिए जब हम कोई प्रोग्राम उसके लिए उसको जब हम कोई शेल्टर या उसको कहीं पर हम किसी सर्विस भेजने की कोशिश करते हैं, जब उसको हमें लगता है कि नहीं बच्चे को अभी तुरंत शेल्टर की प्रोटेक्शन की जरूरत है, और अभी उस टाइम हम उसको ट्राई करते हैं कि वो बच्चा कहीं सेफ जगह पे अच्छे से उसकी परवरिश हो सके, तो सीसीआई में भेजते हैं। सीसीआई में जाने के बाद फिर ये चीज देखा जाता है कि क्या वो मतलब लीगल फ्री है या लीगल फ्री नहीं हो सकता, या लीगल फ्री होने के प्रोसेस में है। तो जो बच्चे लीगल फ्री होने के प्रोसेस में, तो डेफिनेटली वो अडॉप्शन के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे बचते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन बच्चों के लिए फिर क्या अभी तक क्या था, मजबूरी हो जाती थी कि वो सीसीआई में लंबे समय तक रहें। और जैसा कि मैंने शुरू में बोला है कि हमारे एक्ट में देखा जाए या हमारे जो नई रूल्स और गाइडलाइन है, या फिर हम यूएनसीआरसी की बात करें, यूएनजीएसी की बात करें, वहां सब इस चीज को लिखा गया। और ये हम सब भी मानते हैं कि फैमिली बेस्ड केयर ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी पहली प्रेफरेंस है, और हमें उसके हिसाब से बच्चों को उसी प्रकार के सर्विसेज में हमें उनको भेजने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब समस्या ये आती है कि जो बच्चे अडॉप्शन में है, अडॉप्शन के प्रोसेस में है, वो तो ठीक है कि आने वाले टाइम में अडॉप्शन के थ्रू एक फैमिली, अच्छी फैमिली में चले जाते हैं, उनकी परवरिश बेहतर हो जाती है। बट जो बच्चे अडॉप्शन में नहीं जा पाते, लीगल फ्री नहीं है, या फिर जो लीगल फ्री होकर एडॉप्शन के प्रोसेस में बहुत समय तक वेट भी करते हैं, ऐसे बच्चे भी संख्या आती है कि बहुत से बच्चे एडॉप्शन के लिए लीगल फ्री हो जाते हैं, वेटिंग में जाते हैं, लेकिन बाद में वो किसी फैमिली में नहीं जा पाते। उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। हम लोग ऐसे बहुत से बच्चों को जानते हैं जो एडॉप्शन के लिए कई सालों तक इंतजार करते रहे, लीगल फ्री थे, इंतजार करते रहे, इवन कई बार उनकी मैचिंग भी हुई, मैचिंग में एक नहीं दो बार मैचिंग हुई, वहां पर फैमिली आकर उन बच्चों से मिली और उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार हमने देखी है ऑन ग्राउंड। तो एक तो वो बच्चे जो लीगल फ्री नहीं है, ठीक है, और एक बच्चे जो लीगल फ्री हुए वो अडॉप्शन के प्रोसेस में आ गए, और लेकिन लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, और उनकी एज 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल हो गई है, और वो अब उम्मीद खत्म हो गई है कि वो अडॉप्शन में नहीं जा सकते। तो ये जो दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, तो अभी तक क्या स्थिति है कि वो दोनों मजबूर हैं, इस कैटेगरी के बच्चे सीसीआई में रहने के लिए। और मैंने जैसे शुरू में बोला कि सीसीआई में रहने के, सीसीआई बहुत ही बेहतर सर्विस है और बहुत ही एसेंशियल सर्विस है, और इसका अपना इंपॉर्टेंस है। बट लॉन्ग टर्म के लिए जब हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में बच्चे की डेवलपमेंट, उसका जो हम उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोसाइटी से जो उसकी कनेक्शन की बात करते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा वो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि सीसीआई कहीं कम है या अच्छी सर्विस नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। जितनी भी सर्विसेज जेजे एक्ट में लिखी हुई है सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस के बीच में हमें एक चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी है, वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो जब भी हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि बच्चे के लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात हमें सबसे पहला आंसर मिलता है कि उसको एक सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, फैमिली बेस्ड केयर एनवायरनमेंट मिले, जहां पर वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो अभी हमारे आने वाले जो अभी आगे के सेशन है उसमें आप डिटेल में हमसे केस स्टडी भी आपसे शेयर करेंगे कि कैसे एक बच्चे की लाइफ में एक बदलाव आए फैमिली बेस्ड केयर के थ्रू, और उसमें फॉस्टर केयर सर्विस का कैसा क्या रोल रहा।
तो अगर हम इसको फिर से देखें कि जो बच्चे लीगल फ्री थे या लीगल फ्री नहीं थे और लंबे समय तक सीसीआई में रहे, तो इन बच्चों के लिए ही स्पेशली फॉस्टर केयर प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया है। तो ये जो गैप आ रहा था, ये जो हमारे पूरे ओवरऑल चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में जो हमें गैप दिख रहा है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए ही फॉस्टर केयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और अब जैसे आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो बच्चे सीसीआई में हैं या लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं, और जो बच्चे एडॉप्शन में कई बार फेल हुए या फिर उनकी एज बहुत ज्यादा है और वो अब एडॉप्शन में उनको कोई फैमिली उनको शॉर्टलिस्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे भी एडॉप्शन फॉस्टर केयर में जा सकते हैं। तो ये तो एक थी कि वो हमारे जो सिस्टम पूरी वहां पे क्या कहाँ पे नीड खड़ी होती है, नीड कहाँ क्रिएट होती है, उस नीड की बात थी है। अब बात है फॉस्टर केयर क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एडॉप्शन के हिसाब से के कैटेगरी में देखते हैं तो वहां पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि 6 साल से छोटे बच्चे जो लीगल फ्री हैं वो फॉस्टर केयर के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हमको समझना होगा, ये हमें जानना होगा। दूसरी चीज, जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं और वो लीगल फ्री हैं और उनका वेटिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है, तो वो फॉस्टर केयर के लिए जा सकते हैं। तो 6 साल हमने क्या देखा, 6 साल से छोटे बच्चे अगर लीगल फ्री हैं तो फॉस्टर केयर के लिए एलिजिबल नहीं है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी तरफ से होगी वो एडॉप्शन ही होगी, हमें एडॉप्शन पे उन पर फोकस करना है। एंड जो बच्चों जिन बच्चों की एज 6 to 8 ईयर्स है, वो उनका अगर वेटिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है तो वो फॉस्टर केयर में जा सकते हैं। और ऐसे 8 साल से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अगर 1 साल से ज्यादा उनका वेटिंग पीरियड है तो भी फॉस्टर केयर में जा सकते हैं। तो ये लीगल हम स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये वहां पर हमें ये मालूम चलता है कि फॉस्टर केयर के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है। और जो लीगल फ्री नहीं है वो तो सभी बच्चे फॉस्टर केयर के लिए एलिजिबल हैं। वो डिपेंड करता है उनका केस कैसे है और उनका और जो पर्टिकुलर किसी स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई क्राइटेरिया, तो उसके हिसाब से वो चीजें देखनी होती हैं। बट ये मोटा मोटा एक ओवरऑल जो हमें कंसीडर हम करते हैं किसी बच्चे को फॉस्टर केयर प्रोग्राम में भेजने के लिए, वो ये चीज है। इसको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा आता मैसेज कि जो छोटे बच्चे हैं ये लीगल फ्री हैं तो उनको भी अडॉप्शन में ना मतलब कोशिश की जाती है, बट फॉस्टर केयर में भी भेजने की कोशिश की जाती है। तो वहां पर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फॉस्टर केयर अभी हम जब उसको समझेंगे फॉस्टर केयर है क्या, तो हमें एक चीज सबसे पहले मालूम चलती है कि फैमिली बेस्ड केयर सर्विस तो है ये, बट ये टेम्परेरी सर्विस है। मतलब कि कोई बच्चा फॉस्टर केयर में परमानेंट उस फैमिली में नहीं जाता है। तो और यही चीज एडॉप्शन में से इसको अलग कर देती है। एडॉप्शन में कोई बच्चा जाता है तो वो परमानेंट जाता है, उसको पूरा फैमिली का लीगल राइट मिलता है और उसका लीगल राइट उस फैमिली को मिलता है। तो जो इसको अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें, तो अगर एडॉप्शन में कोई बच्चा जाता है और उस फैमिली के पास यदि कोई अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तो जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस कानून की दृष्टि में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो फॉस्टर के एडॉप्शन में जो बच्चे हम लेते हैं उनका पूरा पूरा लीगल राइट उस एडॉप्टिव पेरेंट्स को फैमिली को मिल जाता है। बट जब हम फॉस्टर केयर की बात करते हैं तो फॉस्टर केयर एक टेम्परेरी सर्विस है, यानी एक टेम्परेरी फैमिली बेस्ड केयर प्रोग्राम है। यानी इसका मतलब कि बच्चा एक दिन के लिए भी फॉस्टर केयर प्रोग्राम में जा सकता है, 1 हफ्ते के लिए भी जा सकता है, 1 महीने के लिए भी जा सकता है, 1 साल के लिए भी जा सकता है, और तब तक रह सकता है उस फैमिली जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर जब तक उसको उसके एज जो है 18 ईयर्स वो कंप्लीट नहीं कर लेता है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसको हम देखें तो बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। और चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि ऐसे बच्चे जो बहुत लंबे समय तक जिनके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैपेबल नहीं है उनको अपने पास रखने के लिए, या वो उपलब्ध नहीं है, तो उस पूरे टाइम पीरियड के लिए उनको दूसरी फैमिली में हम फॉस्टर केयर के माध्यम से उनको हम शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एक फैमिली बेस्ड एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका अच्छा नरिशमेंट हो, उनका जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर हो सके, जो उनके राइट्स हैं वो इंश्योर हो सके। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम उनको फैमिली बेस्ड केयर प्रोग्राम के माध्यम से फॉस्टर केयर में भेजते हैं। तो एक चीज हमने समझी कि फॉस्टर केयर प्रोग्राम क्या है, वो एक टेम्परेरी फैमिली बेस्ड केयर प्रोग्राम है, जबकि उसके सामने अगर हम एडॉप्शन को देखें तो ये परमानेंट फैमिली बेस्ड केयर प्रोग्राम है। दूसरी चीज, फॉस्टर केयर में लीगल राइट नहीं मिलता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स का जो लीगल राइट बच्चों को नहीं मिलेगा, फॉस्टर चाइल्ड को, फॉस्टर चाइल्ड जो लीगल राइट है वो पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि फिर अगर आपने फॉस्टर केयर में किसी बच्चे को लिया तो आप उसका नाम नहीं बदल सकते हैं,
डायरेक्टली आपकी जो प्रॉपर्टी उस पर बच्चा क्लेम नहीं कर सकता है, ना बच्चे की प्रॉपर्टी पे आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब मैं लीगल पर्सपेक्टिव में बात बोल रहा हूँ। तो क्योंकि लीगल राइट नहीं है आपको, फॉस्टर पेरेंट्स जो है उनको लीगल राइट नहीं मिलता है इसमें। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि फिर ऐसे ऐसे कौन सी फैमिलीज होगी। सबसे पहला सवाल जो मैं अक्सर देखता हूँ लोगों के बीच में आता है कि ऐसे कौन सी फैमिली होगी जो ऐसे बच्चों को लेगी और कुछ समय के लिए ही लेगी। तो उसको अगर हम देखें तो पहले सवाल हम लोग के मन में भी आता था जब हम लोग आज से 10 साल पहले इस पर काम शुरू किए कि ऐसे कौन सी फैमिली होगी जो इस तरह के बच्चों को अपने घर में जगह देगी। बट मैं आपको बताऊं, अभी अभी हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं जो उसमें डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने पिछले 10 साल में कितने बच्चों को फॉस्टर फैमिली प्रोवाइड करवाने में मदद की और कैसे बच्चे वहां पर रह रहे हैं और कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बात सही है कि थोड़ा अवेयरनेस और थोड़ा कानून की कम जानकारी होने की वजह से कई सवाल आते हैं हमारे मन में, या कई जो लोकल कुछ सिचुएशन होती है उसके हिसाब से कुछ दिक्कतें हमें वहां पे दिखती हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो फॉस्टर केयर प्रोग्राम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक नीड है, और उसके हिसाब से बच्चों कि जो हम बेस्ट इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम अपने जिले में कहते हैं कि हमारे जो जिला है उस जिले में अगर हमें बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट पे काम करना है तो हमें फॉस्टर केयर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और उसके हिसाब से हम बहुत से बच्चों को एक अच्छा वर्तमान और भविष्य दे सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो ठीक है कि हमने फॉस्टर केयर कॉन्सेप्ट को समझा, उसकी नीड को समझा, लेकिन हमारे कानून या जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो इस पर क्या कहते हैं, या उनकी क्या राय है इस पर। तो सबसे पहले तो अगर मैं यूएनसीआरसी की बात करूं जो 1989 में आया, तो उसमें भी बहुत ही क्लियर मेंशन है कि फैमिली बेस्ड हर बच्चे का परिवार हर बच्चे का अधिकार है, और वो तो राइट्स में इसको शामिल करता है और बोलता है कि हर बच्चे को जो है एक अच्छी फैमिली मिलनी चाहिए, एक सेफ फैमिली मिलनी चाहिए, एक लविंग फैमिली मिलनी चाहिए, और जहाँ पर वो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके, जहाँ पर वो एक बेहतर जिंदगी जी सके और एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने को तैयार कर सके। तो यूएनसीआरसी में इसको बहुत ही हाईलाइट करके फोकस करके कहा गया है। यूएनजीएसी को जब हम देखते हैं वहां पर भी, वहां तो पूरा फैमिली बेस्ड केयर को ही प्रमोट किया गया, उसकी बात की गई है। हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि सबसे बड़ा एक्ट है बच्चों के, जब हम बच्चों के लिए बात करते हैं, उनके 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 भी हित के लिए बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 उसमें भी हम देखेंगे, तो उसके प्रिंसिपल में जब हम पहले जाएं, प्रिंसिपल में देखेंगे तो प्रिंसिपल में भी इस चीज को जिक्र किया गया कि बच्चे को एक फैमिली बेस्ड केयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जितने भी हमारा मैकेनिज्म है उसमें पूरे मैकेनिज्म को कोशिश करनी चाहिए कि वो फैमिली बेस्ड केयर एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करे। दूसरी चीज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही जब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात की जाती है तो उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सीसीआई शुड बी, जो इंस्टीट्यूशन है, जो चाइल्ड के इंस्टीट्यूशन शुड बी लास्ट रिसोर्ट होने चाहिए। तो वो एक्ट में भी इस सब चीजों को बहुत ही क्लियर किया गया है। इसके साथ जे रूल में भी इसका मेंशन है, और अलग से हम देखें तो इस पर फॉस्टर केयर पे गाइडलाइन भी 2016 में जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से, और वो पूरे भारत में उसके आधार पर अलग अलग सरकारों, राज्य सरकारों ने नियम बनाए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा समय भी कम है तो मैं थोड़ा जल्दी से इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बावजूद अगर अगर इस कोशिश में कुछ चीज छूट जाती है तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो हम बहुत डेप्थ में चीजों को, कई बार आपको लग रहा होगा कि इस विषय पर हमें और बेहतर और डिटेल जानकारी चाहिए, लेकिन समय कम होने की वजह से हम बहुत डिटेल में उसमें नहीं जा रहे हैं। बट लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकें, इस पूरे फ्रेमवर्क को समझ सकें, और उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो हम ले लेंगे। तो अब फॉस्टर केयर की बात की जाए तो जो हमारा नेशनल गाइडलाइन है उसके हिसाब से दो तरह के फॉस्टर केयर प्रोग्राम है इंडिया में। एक तो इंडिविजुअल फॉस्टर केयर प्रोग्राम है, दूसरा ग्रुप फॉस्टर केयर प्रोग्राम है। इंडिविजुअल फॉस्टर केयर प्रोग्राम में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं भी कोई भी परिवार किसी भी बच्चे को लेने के लिए, या एक आम नागरिक अगर अपने घर पे फॉस्टर केयर सर्विस के माध्यम से कोई बच्चा लेना चाहता है तो वो इंडिविजुअल फॉस्टर केयर माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है अपने जिले की सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ में, और वहां से फिर वो अप्लाई करके इंडिविजुअल फॉस्टर केयर प्रोग्राम माध्यम से एक बच्चे को फॉस्टर कर सकता है।
अच्छा, इंडिविजुअल फॉस्टर केयर में मैक्सिमम आप 4 बच्चे रख सकते हैं। तो यदि आपके अपने कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड है या कोई अडॉप्शन में आपने किसी बच्चे को लिया हुआ है, तो उसको इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम जो नंबर है वो 4 ही होगा। तो सपोज दैट अगर आपकी फैमिली में आपके 2 बच्चे हैं और आप फॉस्टर केयर में बच्चे को लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 2 बच्चे और ले सकते हैं। तो जो टोटल नंबर है वो 4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल फॉस्टर केयर में। दूसरी चीज आती है ग्रुप फॉस्टर केयर। ग्रुप फॉस्टर केयर की जब बात की जाती है तो ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए जो रूल रेगुलेशन वो ये है कि ग्रुप फॉस्टर के लिए कोई रजिस्टर्ड एनजीओ ही अप्लाई कर सकता है। कोई ऐसी संस्था है जिसने खुद को रजिस्ट्रेशन कर रखा है सोसाइटी एक्ट में या कंपनी एक्ट में, और वही अप्लाई कर सकती है ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए। और ग्रुप फॉस्टर केयर में जो केयर गिवर्स जो बच्चों की देखभाल करेगा उसके अपने बच्चों को मिला करके उनकी संख्या 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी किसी राज्यों में मैक्सिमम 10 भी कर दिया गया है, और इमरजेंसी के समय आप 2 बच्चे और बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 जा सकते हैं इमरजेंसी टाइम में। बट जो एक एवरेज की एक औसत की बात की गई वो 8 बच्चे मैक्सिमम ग्रुप फॉस्टर केयर में रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉस्टर केयर में दो तरह के फॉस्टर केयर हैं जो अभी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो इंडिविजुअल फॉस्टर केयर, दूसरा ग्रुप फॉस्टर केयर। इंडिविजुअल फॉस्टर केयर के लिए कोई भी फैमिली अप्लाई कर सकती है, और उसके वो उस पर्टिकुलर उस अपने स्टेट के जो क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल करती है और बच्चे के लिए अप्लाई करती है, तो वहां पे उसको बच्चे फॉस्टर केयर में मिल जाएंगे। दूसरा, ग्रुप फॉस्टर के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको वहां पर एक एनजीओ के माध्यम से आप काम कर सकते हैं, और उस एनजीओ के माध्यम में से ही इन बच्चों को ग्रुप फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप जेजे एक्ट पढ़ते हो, तो जेजे एक्ट जब पढ़ते हो तो वहां जब सीसीआई की डिफिनेशन में जाते हैं तो वहां पर ग्रुप फॉस्टर केयर का मेंशन है। तो प्लीज इसमें डाउट मत रखिए या कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में कि जब हम जेजे एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर तो सीसीआई की डिफिनेशन में ग्रुप फॉस्टर केयर लिखो, इट मीन्स कि ये सीसीआई का पार्ट है। बट एक्चुअल में जब हम ऑन ग्राउंड बात करते हैं या हम जब गाइडलाइन की बात करते हैं, तो फॉस्टर केयर, ग्रुप फॉस्टर केयर की जो सर्विसेज है वो पूरी फैमिली बेस्ड केयर है। जब आप उसकी डिटेल में देखेंगे, अभी आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप फॉस्टर केयर चलाते हैं। संजय जी जो हजारीबाग के डीसीपीओ हैं, जो इस पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे ये हम एक फैमिली बेस्ड एनवायरनमेंट में हम बच्चों को रखते हैं और कैसे हम इनकी परवरिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कानूनी जो कई बार कंफ्यूजन आता है लोगों के दिमाग में, उसको मैं क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मनिंदर, डू आई हैव सम टाइम, और 5 मिनट और मिल सकता है मुझे? So Devashish, it's 3:30. Can you take just 2 more minutes? Yeah, thank you. Yeah, so तो अभी हमने क्या देखा कि कई तरह की सर्विसेज हैं इंडिया में। चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, उसमें एक सीसीआई है, अडॉप्शन है, मेजर पार्ट हम जब देखते हैं, और उन दोनों में के बीच में एक गैप आता है जहां पर ऐसे बच्चों की कैटेगरी निकल के आती है जो बहुत लंबे समय तक के लिए सीसीआई में रहने पर मजबूर हैं, और उनको एक अप्रोप्रिएट फैमिली नहीं मिल पा रही, या वो अपनी जो बिल्कुल फैमिली है, जो उनके रिश्तेदार है, वहां पर वो नहीं जा सकते हैं, और एडॉप्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए फॉस्टर केयर प्रोग्राम है। दूसरा, जो बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए एडॉप्शन में वेटिंग में हैं, या उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो बच्चे फॉस्टर केयर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर प्रोग्राम की बात करें तो 2 तरह का फॉस्टर केयर है, एक इंडिविजुअल फॉस्टर केयर, दूसरा ग्रुप फॉस्टर केयर। इंडिविजुअल फॉस्टर केयर में मैक्सिमम आप 4 बच्चे, कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अपने राज्य में अप्लाई करेगा। एडॉप्शन के लिए हम कारा में अप्लाई करते हैं, बट फॉस्टर केयर के लिए हम अपने राज्य के, अपने जिले की संबंधित जिले के डीसीपीओ या सीडब्ल्यूसी जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए एक एनजीओ के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से सारी बातें रही। अगर आपके इसमें कोई सवाल है तो आगे भी हम इसको अपने सेशन में लेते रहेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू, महेंद्र। Thank you, Devashish, for introducing us to foster care and its components. So you've set the context for this webinar, and from here we are ready to move to the discussion on the procedure involving foster care and the accompanying challenges, stakeholders' perspective. So it's my pleasure to now invite Dr. Shilpa Mehta to take these aspects in her session. Dr. Shilpa is the founder and president of Foster Care Society. She is also a CWC member of Udaipur, Rajasthan. She has a doctorate in clinical psychology and more than 13 years of experience in social work.
She has given various trainings to foster parents to help children manage their emotions on child development, trauma, and its effects. She has also trained government stakeholders from different states across the country on child protection issues and implementation of foster care. She has developed 4 IEC booklets, namely Institutional to Non-Institutional Care, Foster Child, Foster Parent, and Positive Parenting. Welcome, Dr. Shilpa. Yes, thank you, Maninder. First of all, thank you, India Alternative Care Network, for inviting me here on this platform and giving me this opportunity to share some of my experiences to the people who have joined here. So thank you so much to all the participants who have joined here in this webinar. So as Devashish already has said the context about the foster care, the significance of family-based care, and so I will just move forward from there. And also he has said that there is a language bar because most of the participants here are from the Hindi language. So I will try my best to give my message both in Hindi and English. So I'll try my best on that. So अभी तक जो देवाशीष ने जो बताया था कि फॉस्टर केयर क्या है, उसकी जरूरत क्या है, हमें क्यों करना है फॉस्टर केयर, और कैसे ये डिफरेंट है एडॉप्शन से, और हमारा जो इंडियन जो फ्रेमवर्क है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो इसको कैसे देखता है, हमारा जे एक्ट एंड जे रूल्स इस पे क्या बात करता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं. तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अब जो क्वेश्चन आता है, जो हम लोग सोचते हैं कि होगा कैसे ये, मतलब फैमिली बेस्ड केयर करना है, तो फैमिली बेस्ड केयर में जब देना है तो हमें बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे जो फॉस्टर केयर में जाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, और ऐसी फैमिलीज जो फॉस्टर केयर करने के लिए विलिंग हो. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉस्टर चाइल्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉस्टर पेरेंट्स, ये सारी चीजें हमारे प्रोसेस में आती है इसको करने के लिए. तो मूविंग ऑन की सबसे पहले हम ये देखें कि इसके ऊपर अवेयरनेस, कि कितना अवेयरनेस है, कितना लोग बाग जानते हैं फॉस्टर केयर को, क्या समझ को रखते हैं. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस. सबसे पहले तो हमें एक अवेयरनेस करनी है थ्रू वेरियस मीडियम्स, कि जहां से इंक्वायरीज हमारे पास में आए और लोग बाग ये जानने की कोशिश करें कि ये क्या है. क्योंकि मेरा जो कुछ अनुभव है, कुछ 13 साल का, जब से फॉस्टर केयर कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया है, और जो मेरा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में जो मेरा जुड़ाव रहा है इस काम को लेकर के, और रिसेंटली एज अ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर के थ्रू भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है फॉस्टर केयर सिस्टम को, तो वो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी. तो सबसे पहले तो चीज है कि अवेयरनेस हमें करनी है. अवेयरनेस से इंक्वायरीज आती हैं, इंक्वायरीज को हम लोग एंटरटेन करते हैं, एंड उसके बाद में एक एप्लीकेशन जो है, अगर कोई भी पेरेंट अगर विलिंग है, जैसे देवाशीष ने बताया कि कोई भी आम नागरिक जो है, इंडिविजुअल फॉस्टर केयर की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर अपना विलिंगनेस शो कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, एंड एप्लीकेशन के बाद में वो मूव ऑन करती है थ्रू द होम स्टडी. मैं एक बड़ा मतलब सिनेरियो आपके साथ में सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि लार्जर लेवल पे ये प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होता है या इम्प्लीमेंट होता है, जो कि हमारे जे एक्ट और जे रूल्स में भी लिखा हुआ है. और क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं तो हमारे रूल में भी कहा गया है कि हर एक स्टेट को अपनी तरीके से बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारे क्राइटेरियाज देखते हुए उनको अपने स्टेट रूल्स बनाने हैं. एंड आई होप कि इंडिया में भी कई सारे स्टेट्स जो हैं फॉस्टर केयर के ऊपर, ग्रुप फॉस्टर केयर के ऊपर अपने रूल्स एंड गाइडलाइंस बना चुकी हैं, पास कर चुकी हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है.
है। तो उसी तरह से राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा ही है कि जब हमने लार्जर सिनेरियो देखा तो एक्टर रूल बात करते हैं, एक ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं कि प्रोसेस किस तरह से जाएगा, बट स्पेसिफिक स्टेप्स क्या होंगे, वो स्पेसिफिक रूल्स गाइडलाइंस जो स्टेट गाइडलाइंस होती है वो उसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत रहेगी। और यहाँ मैं स्पेसिफिकली बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे फिर हर स्टेट का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, और उसके लिए अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लेटर ऑन इंडिया अल्टरनेटिव केयर नेटवर्क को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक सेशंस रख सके कि हर एक का स्टेट प्रोसीजर्स कैसे होता है। बट ब्रॉडली ये है कि एक एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन डीसीपीयू क्योंकि इसमें नोडल अथॉरिटी रखता है, तो डीसीपीयू के माध्यम से एप्लीकेशन आती है और उस फैमिली का होम स्टडी किया जाता है। होम स्टडी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को प्रेजेंट करती है, सीडब्ल्यूसी उस होम स्टडी रिपोर्ट को गो थ्रू करती है, एंड अगर सीडब्ल्यूसी समझती है कि अगर उसे रिपोर्ट में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, तो सीडब्ल्यूसी उस एप्लीकेंट को फिट पर्सन घोषित करती है। एंड फिट पर्सन घोषित करने के बाद में उसके बाद दे विल मूव ऑन टू द मैचिंग प्रोसेस, और वहां पर वो पोटेंशियल बच्चे भी पोटेंशियल बच्चों की भी जो लिस्ट है वो जारी करती है, एंड उसके बाद में मैचिंग होता है। लास्ट में जो सीडब्ल्यूसी का जो रोल होता है दैट इज इन द प्लेसमेंट ऑर्डर, कि वो प्लेसमेंट ऑर्डर देती है कि ये बच्चा इस फैमिली में जाएगा। एंड आफ्टर दैट सीडब्ल्यूसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी रहता है कि मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, की मंथली मॉनिटरिंग सुपरविजन सीडब्ल्यूसी के द्वारा किया जाता है, एंड ताकि हम लोग बच्चे का वेलबींग देख पाए, एडजस्टमेंट देख पाए कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो दिस इज द होल ब्रॉड प्रोसेस, जिसके अंदर जेजे एक्ट के कुछ फॉर्म्स वगैरह लगते हैं डिफरेंट प्लेसमेंट के हर एक स्टेप्स के थ्रू एंड लास्ट के टाइम। बट ये प्रोसेस जितना हम ब्रॉडली जैसे मैं बता रही हूँ उतना उस लेवल पे अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो उतना आसान भी नहीं है। सो इट्स रियली चैलेंजिंग। और अगर मैं सीडब्ल्यूसी के नाते से अगर मैं बात करूं तो मेरा अनुभव ये रहा है कि इट इज रियली चैलेंजिंग, बिकॉज सीडब्ल्यूसी बॉडी के पास में बहुत सारे चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, एंड उन्हें वो उसमें एंगेज रहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। एंड फॉस्टर केयर बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि एक बच्चे की लाइफ का सवाल है, एक बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट का सवाल है, और अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि हमें चूज करना है एक अच्छी फैमिली, एक बेहतर फैमिली, लविंग फैमिली, जैसे कि देवाशीष ने भी बताया है कि हमारे जितने भी हमारे जो लीगल पर्सपेक्टिव में भी जहाँ बात की जाती है तो वहाँ बेस्ट इंटरेस्ट सबसे पहले देखा जाता है। एंड तो हमें एक ऐसी फैमिली ढूंढना जो इस कॉन्सेप्ट को, इसके सिग्निफिकेंस को मैं समझ रखती हो, एंड वो बहुत ओपनली एंड लविंगली वेलकम करती हो ऐसे बच्चों को जिनको वो फॉस्टर केयर करने में, वो खुशी से फॉस्टर केयर करने में एक्सेप्टेंस रखते हैं। तो एक अच्छी फैमिली का चुनाव करना, और क्योंकि फैमिलीज बहुत तरीके की पर्सपेक्टिव से आती है, बहुत तरीके की सोच से आती है, कई बार उन्हें पता ही नहीं होता कि फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन किस तरह से डिफरेंट है। वो बस आती है इंक्वायरी के फॉर्म में, एंड देन जब उन्हें बताया जाता है कि इस तरह से है तो कई सारे डाउट्स उनके दिमाग में होते हैं। कई बार हमें बहुत ज्यादा बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके देखना पड़ता है कि वेदर दिस फैमिली इज गुड, इज रियली फिट्स इनटू द फॉस्टर केयर प्रोसेस या नहीं। तो ये सारा चुनाव करना, फिर पोटेंशियल बच्चों का चुनाव करना, एज अप्रोप्रिएट चुनाव करना, फिर उनका मैचिंग कराना, बच्चे का काउंसलिंग करना, क्योंकि बच्चे को भी हमें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है मैचिंग के दौरान। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द प्लेसमेंट, कि जब ये सारा प्रक्रिया हो जाती है और उस प्लेसमेंट के बाद भी कई सारे चैलेंजेस जो है वो सामने आ जाते हैं। तो इट इज नॉट ऑल वेरी रोजी पिक्चर कि हाँ ठीक है प्लेसमेंट हो गया एंड इट इज ऑल डन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड आई थिंक द एक्चुअल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, कि जब हम प्लेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद में जो इनिशियल जो
वीक्स हैं और आई वुड से मंथ्स हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग रहते हैं, बिकॉज बच्चा का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सीसीआई टू अ फैमिली, इनटू अ फैमिली, जहां पर नया माहौल है, नए लोग हैं, नया कल्चर है, सब चीजें नई है, वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इवन द सेम विद द फैमिली के लिए भी वो चीज नहीं है, वो बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दौरान एडजस्टमेंट इश्यूज रेज होते हैं, एंड ये वो टाइम है जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हमें लगती है कि हम किस तरह से इस एडजस्टमेंट को सक्सेसफुल बना सकें। सो ब्रॉडली CWC के सिनेरियो में ये सारी चीजें आती हैं, बट बिकॉज CWC इज ऑल्सो द लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, कि जैसे प्रीवियसली देवाशीष ने कहा था कि इट्स अ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, और CNCP कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो इसमें जाते हैं, और ड्यूरिंग फॉस्टर केयर जो फॉस्टर फैमिली है उनको लीगल राइट्स नहीं मिलते जो कि अडॉप्शन में है। सो द लीगल गार्जियन तब तक जब तक फॉस्टरिंग चलती है तो लीगल गार्जियन CWC होती है। तो CWC के पास में एक वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहां बच्चे दे रहे हैं वो सेफ लविंग एनवायरमेंट में ग्रो करें। नाउ आई विल कम टू द जो चैलेंज जो CWC जो मैंने आपको बताया जो फेस करती है, उसके लिए मेरा अनुभव जो कहता है, जो मैंने देखा भी है कि कई बार ऑन ग्राउंड हमें फिर उसमें सफलताएं भी मिलती है। तो अगर जिले में CWC किसी ऐसी एजेंसी को, टेक्निकल एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करती है, या वहां पर जो लोकल NGOs हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम करते हैं या जो इसको काम करने में समझ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, करना चाहते हैं, अगर उनके साथ में वो उनको हायर करती है तो इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट, मतलब एक अच्छा सपोर्ट नेटवर्क, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम की तरह वो काम करेगा, सो दैट कि दे विल हेल्प आउट इन ऑल दीज थिंग्स, कि जहां पर जितनी भी चीजें मैंने बताई, फॉस्टर केयर कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट फ्रॉम द इंक्वायरी, अवेयरनेस से लेकर के प्लेसमेंट एंड आफ्टर प्लेसमेंट तक जो एजेंसी है वो बराबर कंटिन्यूअस सपोर्ट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को अगर प्रोवाइड करे, DCPU को, CWC को, तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनके एक सक्सेसफुल और एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन इसमें हो सकता है। और ऐसा क्यों, मैं ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान की बात करूं, और राजस्थान में अगर हम उदयपुर जिले को देखते हैं तो वहां पर अभी सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल फॉस्टर प्लेसमेंट्स हुए हैं, करीबन लाइक 24, एंड अभी और भी चल रहे हैं इन द प्रोसेस। बट जो अगर मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं उसका सक्सेस का श्रेय अगर देती हूँ तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किंग बना हुआ है CWC, DCPU, CCI और एजेंसी का, टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का। हम सब एक साथ मिलकर के वो काम करते हैं ताकि अगर कोई भी इश्यूज हो तो वो आपस में एड्रेस होते हैं, एंड कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, ना फैमिली को ना बच्चे को। तो मेरा रिकमेंडेशन भी ये है कि अगर हमें अन्य जिलों में भी अगर इस प्रोग्राम को अगर इसका बेहतर क्रियान्वयन करना है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना है, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो हम एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी को जरूर हायर करें, which would support the government stakeholders also, because government stakeholders are really stuck into various issues on the child protections। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि हर एक का इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं होता है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन उसको इसका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, जैसे तो उसमें भी वो मदद करेगा कि हम कैसे इसको आगे लेकर के जाएं। एंड also looking into the time, I will also share some of the case studies, क्योंकि समय कम है एंड हमें और भी लोगों को सुनना है, एंड क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि शायद थोड़े से समय में हम अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पाएंगे, बट मैं आपको कुछ पिन पॉइंट्स जरूर इस सेशन के दौरान जरूर देना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया कि बहुत बेहतर प्रोग्राम है, जैसे मेरी समझ बनी है जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है, बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है ऐसे बच्चों के लिए, बेहतर सर्विस है ऐसे बच्चों के लिए जो वाकई में लॉन्ग
टाइम से CCIs में थे, और उन्हें जब वहां से निकाल कर एक परिवार का माहौल दिया जाता है, स्टार्टिंग डेज रियली बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, लेकिन लेटर ऑन हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपके सामने 2 केस स्टडीज शेयर करना चाहती हूँ क्विकली इंडिविजुअल फॉस्टर केयर के लिए। एक लड़के की है और एक लड़की की है। तो स्टार्टिंग विद द एक बॉय का मैं केस स्टडी शेयर करती हूँ कि 4 साल का बच्चा है एंड बेगिंग करते हुए वो चाइल्ड लाइन के नोटिस में आता है, एंड आफ्टर द प्रोसीजर वो जो है हमारे CCI में आ जाता है, शिशु गृह में आ जाता है। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब वो CWC के पास भी आता है तो पता चलता है कि वो बच्चा गुम गया है, इज अ मिसिंग चाइल्ड, और वो इस तरह से पकड़ा गया है। लॉट ऑफ ट्रेसिंग करी जाती है उस बच्चे की, एंड ट्रेसिंग के दौरान पता चलता है उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो ट्रेस भी हो जाते हैं, एंड लेकिन वो पता चलता है कि वो बंजारा फैमिलीज को बिलोंग करते हैं एंड सीवियर अल्कोहलिक हैं और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। एंड बच्चा जब हमारे पास में CCI में आता है तो बच्चे का जो बिहेवियर है, तो 4 साल का बच्चा विमल गुटखा खाता है, टोबैको च्यूअर है वो, एंड कई सारी बिहेवियरल चैलेंजेस को लेकर के वो CCI में आता है। बट वन थिंग इज दैट कि और उसने कई सारे ट्रॉमास देखे हैं अपने सामने, मतलब बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्ड है, कई सारी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं उसने अपने आंखों के सामने देखी हैं जो कि रियली वेरी शिवरिंग। तो लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई करने में है। जब वो CCI में आता है, शिशु गृह में आता है, लोगों को देखता है, तो कई बार वो बोलता भी है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्कूल जाना है, एंड he has never been to school yet। तो काफी इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशन के बाद में एंड साइड बाय साइड एक परिवार भी क्योंकि साइमल्टेनियसली एक परिवार का चुनाव भी चल रहा होता है, तो एक परिवार जो कि टीचर हैं, प्रोफेशन टीचर बाय प्रोफेशन, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनसे मुलाकात होती है एजेंसी की, एंड वो बताते हैं इसके बारे में कि फॉस्टर केयर भी एक प्रोग्राम है, एंड उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा होता है अडॉप्शन में, एंड इट्स बीन लाइक 2-3 years ऑफ वेटिंग उनका चल रहा होता है। मीनवाइल इसी दौरान वो किसी प्रीवियस कोई पूर्व CWC मेंबर के टच में आते हैं, एंड उन्हें इसके बारे में बताया जाता है कि भाई फॉस्टर केयर भी एक प्रोग्राम है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो वो काफी इंटरेस्ट शो करता है परिवार, एंड फिर उनको जब इस बच्चे के बारे में बताया जाता है, जब CWC डिक्लेयर करती है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट उसके बायोलॉजिकल फादर में, बायोलॉजिकल पेरेंट्स में जाने का अभी नहीं है, बिकॉज दे आर सीवियर अल्कोहलिक, उनका कोई एक लोकेशन नहीं है, कोई घर बार नहीं है, एंड दे आर इनटू इलीगल एक्टिविटीज। तो CWC उस बच्चे को पोटेंशियल फॉस्टर चाइल्ड डिक्लेयर करती है, एंड बच्चे का मैचिंग करवाया जाता है, काउंसलिंग करवाया जाता है। तो बच्चा बहुत हैप्पी एंड एक्साइटेड रहता है इनिशियली शुरुआत में, एंड फैमिली भी बहुत विलिंग, बिकॉज फैमिली का ये कहना है कि वो क्योंकि टीचर हैं, बच्चों के साथ में जुड़ाव रखते हैं, एंड लंबे समय तक उनके कोई इश्यू नहीं था, बट फिर भी उनको बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं और अपने स्कूल के बच्चों के लिए करते हैं। तो जब उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो वो बोले कि जब मैं इतने बच्चों के लिए करता हूँ तो मेरी ये एक सेवा के रूप में होगा कि मैं अगर इस बच्चे को अपने घर पे ला करके और अच्छी परवरिश दे करके अगर हम इसका कुछ जीवन बेहतर कर सकते हैं तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। तो ऐसे विलिंगनेस के साथ में ही फैमिली आगे बढ़ती है, एंड इनका प्लेसमेंट होता है। और क्योंकि मैंने बताया कि इनिशियल डेज बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो इस बच्चे के साथ भी सेम ऐसा ही था, क्योंकि बच्चा बहुत ट्रॉमेटाइज्ड फील्ड से आया था, बहुत डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आया था, तो कई सारी गलत चीजें, गलत बिहेवियर, मैल एडेप्टिव प्रैक्टिसेस इस बच्चे में थी, और इसका डायलेक्ट भी नॉर्मल नहीं था, तो भाषा समझने में भी कई बार दिक्कत आती थी, एंड तो कई सारी ऐसी बिहेवियरल इश्यूज हमें देखने आए, जैसे चोरी करना, अब्यूजिव लैंग्वेज करना, कई बार एग्रेसिव हो जाना, बात नहीं मानना, एंड वेरियस थिंग्स।
लेकिन फैमिली को क्योंकि पहले से मेंटली प्रिपेयर किया गया था, उनकी ट्रेनिंग्स की गई थी, एंड बराबर आफ्टर पोस्ट ट्रेनिंग्स भी इनको दी जाती थी, उनके साथ में काउंसलिंग करी जाती थी। तो वो फैमिली के एफर्ट से, बाकी स्टेक होल्डर्स के एफर्ट से, टेक्निकल सपोर्ट एजेंसीज के एफर्ट से आज 5 साल उस बच्चे ने फॉस्टर केयर में पूरे किए हैं। एंड नाउ मतलब ही इज इनटू 4th स्टैंडर्ड, स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। जिस बच्चे को प्रॉपर हिंदी बोलने नहीं आती थी, वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज बोलता था, तो आज वो इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, एंड ही इज एक्सेलिंग वेरी गुड इन द एकेडमिक फील्ड ऑल्सो। बट इसके ड्यूरिंग फॉस्टरिंग प्रोसेस मैंने ये देखा है कि अगर फैमिली को लगातार सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कई बार बर्न आउट सिचुएशंस होती है जहां फैमिली घबरा जाती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत डिफिकल्ट इश्यूज भी आते हैं। तो वहां पर अगर हम सब मिलकर के एक साथ सपोर्ट करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं, तो फैमिली आल्सो फील्स वेरी मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक टू मूव फॉरवर्ड। तो ये होना चाहिए। एंड स्टिल अभी बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, एंड ही नोज अबाउट हिज फैमिली, बायोलॉजिकल फैमिली, एंड ये फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से इसको रखती है। बट ही इज हैप्पी हियर बिकॉज ही रिपोर्ट्स दैट आई फील वेरी हैप्पी हियर बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, एंड आई गेट ऑल द फैसिलिटीज ओवर देयर। So this is the importance of like a family based care program, जहां पर हम शायद एक बच्चे का फ्यूचर बदलने की कोशिश करते हैं। और उनकी फॉस्टर मदर की आज भी ऐसी इच्छा है कि मैं इसको कलेक्टर बनाऊं या मैं इसको पुलिस में बनाऊं। वो हमेशा जब भी मॉनिटरिंग होती है तो वो कहती है कि आई एम पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स कि ये एक अच्छा इंसान बन जाए, दैट इज ऑल वी वांट। So this is the one case study, and quickly because there's a limitation of time, so I'll share a second स्टोरी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ये गर्ल चाइल्ड जो है ये शुरुआत से बहुत छोटे से शिशु गृह में रही हैं, एंड इनकी जो मदर है वो मेंटली चैलेंज थी। तो शुरुआती दौर में क्योंकि ये बहुत छोटी थी तो मदर के पास ही इनको रखा गया था। बट जैसे जैसे ये बड़ी हुई, क्योंकि मदर की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो अपना केयर प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। सो देन इस बच्चे को शिफ्ट किया गया था शिशु गृह में, एंड देन शिशु गृह से भी जब ये बच्ची बड़ी होने लगी, आफ्टर 5 years ये बच्ची शिफ्ट हो गई बालिका गृह में। एंड और क्योंकि मदर की कंडीशन उस समय भी ऐसी ही थी, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, बट वो है कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। एट द टाइम उस बच्ची को जब भी मिलने जाते थे तो शी ऑलवेज मतलब एक उनका रहता था मन में कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन अ फैमिली, मुझे भी जाना है, मुझे भी एक घर चाहिए, मुझे भी एक परिवार चाहिए, इस तरह से वो बोलती थी। एंड मीनवाइल ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस आई, उनमें से एक मदर, सिंगल मदर हैं, उन्होंने अप्लाई किया फॉस्टर केयर के लिए। एंड ये जो मदर हैं, जो फॉस्टर मदर आई थी, ये इन्होंने पहले एक बच्ची को अडॉप्ट कर रखा है, गर्ल चाइल्ड को प्रीवियसली अडॉप्ट कर रखा है। एंड नाउ जब ये आई तो इन्हें भी फॉस्टर केयर के बारे में नहीं पता था। तो जब ये अडॉप्शन एजेंसीज में आई, CWC से मिली, तब इनको फॉस्टर केयर के बारे में बताया गया, एंड शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस कि मैं इसके तहत एक बच्ची को लेना चाहती हूँ। आई ऑलरेडी हैव एन अडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड, बट मैं रियली इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर, तो वो आगे बढ़ी इसमें, एंड उन्होंने इस बच्ची को लिया, इस बच्ची को अपनाया, वेलकम किया बहुत अच्छे, और इन्होंने नहीं, इनके पूरे परिवार ने वेलकम किया इस बच्ची का। एंड द सेम इश्यू जो मैंने बॉय के केस में बताया था, वही बच्ची के केस में भी था, क्योंकि बच्ची बहुत लॉन्ग टाइम 7 years उन्होंने एक संस्था में गुजारे थे बच्ची ने, और उसके बाद में वो एक फैमिली के माहौल में आई थी। तो धीरे धीरे उसे समझ नहीं थी कि फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, कौन 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 होता है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो धीरे धीरे वो समझ बनानी पड़ी। जो सिबलिंग थी, जो उनकी बड़ी अडॉप्टेड डॉटर थी, उनके सिस्टर के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। हालांकि उनके लिए भी वो दिन बड़े चैलेंजिंग थे। कभी कभी वो एड्रेस भी करती हैं कई प्लेटफॉर्म्स पे कि इनिशियल डेज
चीज बहुत चैलेंजिंग रहे, क्योंकि ऐसे बच्चा जो प्रॉपरली स्कूल नहीं गया, जिसको प्रॉपरली हिंदी बोलने नहीं आती, जो अपना लोकल डायलेक्ट बोलता है, जिसको प्रॉपरली उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिला, क्योंकि माँ थी लेकिन माँ से भी उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो वो बच्चा आगे जाके एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी शो करता है, एक्सेप्टेंस उसको बहुत जल्दी नहीं आती है रिश्तों की। तो धीरे धीरे वो चीज की समझ बनाना एंड लेकिन ये एक ऐसी फैमिली थी जिन्होंने कुछ भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन जब हम मॉनिटरिंग के लिए जाते थे तो वो ये कहती थी कि आई नो कि ये इश्यूज हैं, बट आई ऑल्सो नो कि ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, सिचुएशंस ऐसी थी जिसने बच्चे को इस तरह से बना दिया, तो ये बच्चे की गलती भी नहीं है और ये हमें ही ठीक करना है और हमें बच्चे को एक्सेप्ट ऐसे ही करना है, बट हम अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि हम इसको मोल्ड कर पाए, इसके बिहेवियर को मोल्ड कर पाए। और उन्होंने कई प्रयास किए इसके लिए, बच्चे को डिफरेंट क्लासेस में भेजा एंड शुरुआत से बेसिक वो ये जानते हुए कि बच्चा 7 साल का है, उन्होंने शुरू से नर्सरी से उनको एजुकेशन कराना चालू किया, ताकि वो ये मानती है कि बच्चे का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चा कुछ समझ बननी चाहिए एंड धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ जाएगा। कई सारे हॉबी क्लासेस में ज्वाइन कराया, कई सारे एक्टिविटीज में उन्होंने उसके साथ में ज्वाइन कराया, कई रातों तक उन्होंने पढ़ाया बहुत। शी इज द सिंगल मदर, शी इज वर्किंग एंड तो उन्हें अपनी अडॉप्टेड डॉटर का भी देखना है, इसका भी देखना है, बट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, साथ में काम किया एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फैमिली को भी 5 साल हो गए हैं एंड नाउ ये बच्ची जो है बहुत अच्छा इंग्लिश में बोलती है, इंग्लिश में नरेशन करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है एंड रिसेंटली 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे जब कन्या महोत्सव मनाया जा रहा था, तो उस दौरान इस बच्ची ने हमारे WCD मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के साथ में इंटरेक्शन किया और बहुत बोल्डली इंटरेक्शन किया। और इस बच्ची का एक स्टेटमेंट लास्ट में उन्होंने ये बोला है कि मैम, जिस तरह से मुझे एक अच्छा फैमिली मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस बालिका गृह से आई हूँ वहां पर भी सब बच्चियों को बहुत अच्छा फैमिली मिलना चाहिए। सो नाउ वी कैन सी कि जो बच्चे लंबे समय से वहां पर रह रहे थे और हम फैमिली जब बेस्ड केयर जब इन्हें मिला, तो किस तरह से इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। हालांकि इट्स रियली चैलेंजिंग, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट इट्स अ टीम वर्क। सो आई वुड से इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CWC या DCPU या फैमिली या CCI, बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। तो एक अच्छा नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनना चाहिए सो दैट हम बच्चे के भविष्य को बेहतर करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच। आई थिंक मनिंदर, इज इट टाइम है? आई हैव टेकन अहेड ऑफ spoken ahead of time. So no, that's Thank fine. you. That's Right. fine. Thank you so much, Dr. Shilpa, for taking us through the process involved in foster care and for elaborating on the situations where foster care can be used as alternative care mechanism through case stories. Also for talking about promising practices, ground level challenges, and giving some key suggestions. So now I invite Mr. Sanjay Prasad to share his insights and experiences of working on group foster care as a district child protection officer. Mr. Sanjay is the DCPO at Hazaribagh since 2013. He has a master's in economics and social work. He has worked on areas of education and child protection with UNICEF. He has also worked on issues related to women empowerment and self-help groups. I welcome you, Sanjay ji. आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं, प्लीज। सभी को नमस्ते। मैं संजय प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हजारीबाग झारखंड में से हूँ। 2013 से जब हम काम करना शुरू किए, चूँकि JJ एक्ट में 2 तरह की बात होती है, एक इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज की, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज की। इस इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं, चिल्ड्रेन होम, शेल्टर होम, एडॉप्शन एजेंसी काम करती है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में हम लोगों ने अभी तक उस समय जब शुरुआत की थी उस समय तक कुछ था नहीं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी।
तो बहुत बार दिमाग में आया ऐसा, मन में सोचे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, जबकि हमारे पास स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर के लिए गाइडलाइन भी उपलब्ध था, लेकिन हमारे पास उस तरह की कोई व्यक्ति या संस्था मिल नहीं पा रही थी कि हम उनके साथ इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को शुरुआत कर सके। फाइनली उसके बाद झारखंड सरकार का 2018 में गाइडलाइन आया, तो थोड़ा सा हम लोग का स्पष्ट हुआ। उसके बाद हम लोग स्पॉन्सरशिप और पर शुरुआत में काम शुरू किए, और स्पॉन्सरशिप के साथ साथ पोस्टल केयर के लिए पहले तो हम लोग इंडिविजुअल पोस्टल केयर का ही बात करते थे। इसके लिए हमने अखबार में विज्ञापन भी निकाला था, लेकिन कोई भी इच्छुक फैमिली इंटरेस्टेड नहीं हुए, और उन्होंने किसी भी तरह का कोई आवेदन या संपर्क भी स्थापित नहीं किया। इसके पश्चात एक दिन अखबार में हमने एक समाचार पढ़ा, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए आशीष जी ज्ञान मार्ग चैरिटेबल ट्रस्ट के, उन्होंने एक अखबार में समाचार दिया था अनाथालय शुरुआत करने के संबंध में। तो जैसे ही हम समाचार पे नजर गया, तो सबसे पहले सोचा कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कौन से लोग हैं जो इस तरह का कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, और इनको जे एक्ट के बारे में जानकारी है अथवा नहीं है। ये सारे बहुत सारे चीज मेरे दिमाग में आ रहा था। तो हमने मतलब समाचार के माध्यम से ही किसी सोर्स से पता किया कि इनका एड्रेस कहाँ है। तो हमने इनका एड्रेस पता करके इनका मोबाइल नंबर भी लिया, फिर इनसे बात किए। तो उस समय ये शहर से बाहर थे। उसके बाद इनसे संपर्क स्थापित किया, तो ये फिर बोले कि ठीक है, हम आपसे ऑफिस में आकर के मिलते हैं। ये जब हमसे मिले तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरी इच्छा है कि हम एक लड़कियों का चिल्ड्रेन होम शुरू करेंगे। तो हम बोले इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन, जे में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, और बहुत सारा नॉर्म्स है, उसका पालन करना होता है। तो ये बताए कि हम लोग करेंगे उसके लिए, लेकिन जानकारी का अभाव है, जिसके कारण से हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमने बताया कि नहीं, इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। और चूंकि मेरा दिमाग हमेशा से था फैमिली बेस्ड केयर के लिए, तो हमने इनके साथ एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप चिल्ड्रेन होम, तो बहुत सारी झारखंड में या देश में संस्थाएं चल रही है, लेकिन इस तरह का ग्रुप फोस्टर केयर का कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, किसी संस्था के द्वारा इस तरह का काम नहीं किया जा रहा। अगर ये काम करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो चूंकि मेरा भी नॉलेज उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जब इनसे बातचीत हुई तो हम इनको काफ़ी प्रेरित करने का कोशिश किए, क्योंकि हमारा ये नीड था हमारे ज़िले का कि हम लोग एक ग्रुप फोस्टर केयर शुरू करें। तो ये शुरुआत में तो चिल्ड्रेन होम के लिए ही तैयार थे, लेकिन पुनः इनसे बातचीत करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद तैयार हुए। और शुरुआत में हमने इनको जे एक्ट और जो झारखंड फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप जो गाइडलाइन है, उसके बारे में इनको अध्ययन करने के दिया। तो ये काफ़ी पढ़ने के बाद समझे, और इन्होंने मतलब अपनी रजामंदी दी कि हाँ, हम इस ग्रुप फोस्टर केयर को शुरुआत करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये तैयार हुए, उसके बाद हम लोग आपस में एक मीटिंग भी किए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ, और इनको आवेदन के लिए एक प्रपत्र दिया, और इन्होंने आवेदन दिया। तो उस गाइडलाइन में या जे में जो भी नॉर्म्स हैं, सभी नॉर्म्स को के अनुसार से जितने भी सर्टिफिकेट या जांच संबंधित कागजात या दस्तावेज की आवश्यकता होती है, सारे दस्तावेज को हम लोगों ने तैयार कराया। और ये मुख्य बात इनके साथ ये है कि स्वयंसेवी संस्था एनजीओ तो बहुत सारी काम करती है, लेकिन ये दिल से काम करने वाले व्यक्ति हैं। और जब तक ग्रुप फोस्टर केयर में दिल से काम करने वाला कोई संस्था नहीं मिलेगा, तब संभवतः हमको लगता है बहुत हाई रिस्क होगा इसके लिए। तो हमको ऐसे लोगों की पहचान करना होगा, ऐसे संस्था को पहचान चिन्हित करना होगा जो कि इस काम को पूरे तन मन से करना चाहते हैं। इसके बाद ये तैयार हुए, तो इस प्रक्रिया में करीब 2-3 माह लग गया,
और उसके बाद फिर इनको CWC के द्वारा इस संस्था को फिट फैसिलिटी घोषित किया गया पूरे कागजात के बाद। उसके बाद शुरुआत में हम लोगों ने 4 बच्चों को मैचिंग कराया था। उसके लिए जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात पहले हो भी चुकी है कि बच्चों को उस फैमिली से जहाँ पे रखना चाहते हैं उस संस्था के फैमिली से हमने मिलाया, दोनों को, बच्चों को इनसे मिलाया और ये बच्चे से बातचीत किए। बच्चे की सहमति और इनकी सहमति के पश्चात ही बच्चे वहाँ आदेश CWC के आदेश से ग्रुप हॉस्टल में गए और इसके बाद ये शुरुआत हुआ। तो अभी यहाँ पे 9 बच्चे हैं, जबकि 10 बच्चे वहाँ गए थे और इनके पूर्व से ही 2 बच्चे और हैं। तो कुल मिला करके अभी 11 बच्चे हैं, इनके अपने बच्चे मिला करके। और हर महीने हम लोगों का फॉलोअप भी होता है। फॉलोअप में जा करके बच्चे से मिलते हैं, उनका एजुकेशन, हेल्थ, सारा चीज़ देखा जाता है, खाने पीने का व्यवस्था। तो जो सर्विसेज गाइडलाइन में है या एक्ट में है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, कपड़े, रेसिडेंस से संबंधित जो भी जरूरत है वो सारा चीज़ उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सबसे मुख्य खास बात यह है कि हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप अगर इसके लिए सहायता राशि अगर सपोर्ट के रूप में अगर चाहते हैं, जो स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर गाइडलाइन में है 2000 रुपया पर बच्चे के हिसाब से पर महीने, तो ये संस्था को जाएगा। चूंकि ये ग्रुप फोस्टर केयर है, अगर ये इंडिविजुअल भी होता तब भी ये फैमिली को ही पैसा जाता, चूंकि इनके द्वारा पालन पोषण किया जा रहा है। लेकिन ये तैयार नहीं हुए और अभी तक इन्होंने एक भी पैसा किसी से सहयोग नहीं लिया है और स्वयं के अपने पैसे से ही ये पूरे संस्था का ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसका एक्सपोजर भी हुआ, रिवार्ड भी मिला। और हम लोग इस तरह की संस्था को काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि और भी संस्थाएं आए और इस तरह का काम करें। इंडिविजुअल फोस्टर केयर तो हम लोग अभी तक यहाँ नहीं कर पाए हैं, लेकिन ग्रुप फोस्टर केयर एक शुरुआत हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस ग्रुप फोस्टर केयर में देवाशीष जी भी विजिट कर चुके हैं, इनसे मिले हैं और काफ़ी संपर्क में रहते हैं। तो इनसे देवाशीष जी से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता रहता है। तो अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि और संस्था है, इसके लिए हम लगे हुए हैं ताकि दूसरी संस्थाओं के साथ मिल करके भी और ग्रुप फोस्टर केयर शुरू किया जा सके। और विशेष तकनीकी जानकारी, टेक्निकल चीज़ हम नहीं शेयर कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट लोग हैं हमारे बीच में, तो बताएंगे। तो बस हम शुरुआत कैसे हुआ था इस चीज़ को शेयर करना चाहते थे। इसमें अगर किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप अगर पूछना चाहते हैं तो सवाल ले सकते हैं। Thanks a lot, Sanjay ji. If we have any questions, we can, anyone has a question, they can type in the chat box. And we can take the questions in the end. So thank you, Sanjay ji, for making us familiar with group foster care and how it initiated. And also for emphasizing the importance of a child-centric approach for promoting foster care. Now we are pleased to introduce you to our next speakers. Mr. Ashish Kumar is the president and founder of Group Foster Care Home Gyanmart Charitable Trust, Hazaribagh, Jharkhand. He has been a foster father since 2019. He is joined by his wife, Ms. Kusuma Gupta, who is working as GST's director and foster mother. Our speakers will be sharing with us their experiences of running the group foster home and stories from the field. So welcome Kusuma ji and Ashish ji. Hello. Hello, thank you. Thank you. Namaste. हेलो, आवाज हमारी आ रही है क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, आ रही है.
जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप। जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस वेबिनार में शामिल किया है। इस फील्ड में मैं अपनी यात्रा कुछ साझा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। तो सन 2013 की बात है। 2013 मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ आया जहां मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरा अपना एग्जिस्टेंस क्या है और किस लिए है, मेरे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है, इस प्रश्न की उत्तर की खोज में मैं श्रीमद् भागवत गीता की शरण में गया और वहां मुझे काफी जानकारी मिली। और अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशने के बाद 2014 में ज्ञान मार्ग चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना का निर्णय हमने किया और हमने और मेरी पत्नी ने दोनों मिलकर इस काम को शुरू किया। और हमने एक अपने आप से कमिटमेंट किया कि अब अपना शेष जीवन उन्हीं के लिए बिताएंगे जिनका कोई नहीं है, उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए हमें सहारा बनना है। तो क्या है कि 2014 के बाद 3 से 4 साल तक हम लोग उन्हीं लोगों के लिए काम किए जो लगा कि जरूरतमंद है, किसी को अगर भोजन चाहिए या कुछ पैसे चाहिए तो हम अपने से करते चले गए। लेकिन उसके बाद जब 2019 के आसपास 18-19 के आसपास हम लोगों को लगा कि हम लोग को अब बच्चों के क्षेत्र में या बड़ों के क्षेत्र में हमें काम करना है, तो सबसे पहले हम दोनों मिलकर यही निर्णय किए कि अब हम लोग को बच्चे के क्षेत्र में बाल आश्रम के रूप में हम लोग को काम करना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया कि अपने से ही सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि जो समझ में आता है कि बच्चे के लिए क्या क्या नीड होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के भी बच्चे हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, उसी नीड के हिसाब से हमने अपना एक सेटअप तैयार किया और तैयारी कर रहे थे, सारी चीज तैयार किया। और इसी दौरान जैसा कि संजय सर भी जी की भी बताए, तो उसी दौरान कहिए कि हमें जानकारी मिला कि सीसीआई और फॉस्टर केयर के बारे में, दोनों के बारे में सर से जानकारी मिली कि क्या है। तो उसके तहत फिर हमने अपने ग्रुप फॉस्टर केयर में ज्ञान मार्ग चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ग्रुप फॉस्टर केयर को चलाने का हमने निर्णय लिया। और क्या है कि इस कार्य को शुरू करने में समस्याएं तो बहुत आई, परंतु चूंकि हम काम करने के लिए स्व प्रेरित थे और स्व संकल्पित थे, इसलिए हमें कोई समस्याएं जो हैं समस्याएं के रूप में न दिखकर हर वक्त हमें समाधान ढूंढने की ओर प्रेरित किया गया कि अगर कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें समस्या नहीं खड़ा करके कैसे ये कंप्लीट होगा, कैसे इसका समाधान ढूंढेंगे, उस हिसाब को देखते हुए हमने काम को शुरू किया। तो क्या है कि 2019 में हमने ग्रुप फॉस्टर केयर के तहत बच्चों के माता पिता बनने का कहिए कि सौभाग्य प्राप्त हुआ। और शुरू में DCPU और CWC के माध्यम से ही हमारे यहाँ 3 बच्चियां आई सबसे पहले, और जो वो तीनों बच्चियां पहले CCI में रहती थी और हमारे यहाँ आई थी। उस समय क्या था कि बच्ची बड़ी भी थी और कुछ चाइल्ड मैरिज का केसेस भी था, और उस तरह के तीनों बच्चियां हमारे पास आई। और हमारे यहाँ कहिए कि उन बच्चियों का जो भी सेवा करना था करने के बाद जब 18 वर्ष बच्चियों का हुआ तो 2 बच्चियों को, जो बड़ी बच्ची तो फिर उनके फैमिली में हमने रिस्टोर भी किया। ये सारा जो रिस्टोरेशन का बात है वो सारे जो डिपार्टमेंट के तहत मिल करके बात होती है वो सारा कुछ हुआ। और कुछ बच्चियां और भी हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आई और जो कहिए कि कुछ दिन के बाद अपने अपने परिवार में पुनः शामिल हो गई। तो ये कार्य हमें काफी अच्छा लगा, कहिए कि चूंकि हम हमारा ये स्व प्रेरित होकर काम किए थे तो तसल्ली लगता था कि हाँ भाई ठीक है, ये काम अच्छा है, हम किन्हीं के काम आ रहे हैं इस दुनिया में। और फिर इसी काम को हमारा काम आगे बढ़ता चला गया। और अगस्त 2019 के समय दैनिक समाचार पत्र में एक ऐसे परिवार की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें कुल 5 बच्चे थे, जो रिसेंटली ही उसी वक्त मतलब माँ डेथ की थी, तो मतलब 5 बच्चे अनाथ हो चुके थे और उनके पिता पहले ही डेथ कर चुके थे, जिसमें से 3 लड़की थी और 2 लड़का। और सबसे छोटा बच्चा जो है 2 साल का था और सबसे बड़ा 13 साल का। तो जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, पेपर में भी वो मेंशन था, उस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं उनको एडॉप्शन में भेजने की तैयारी थी। जैसा कि सर से भी बात हुई थी, देवाशीष सर भी शुरू में बोले कि छोटे बच्चे को एडॉप्शन में जाना चाहिए था, लेकिन जो फैमिली की बात है तो हम जो देख रहे थे कि छोटे बच्चे को अगर भेजा जाता है एडॉप्शन में और बड़े बच्चे को CCI में, तो एक बार फिर से माँ बाप तो कहिए कि
नहीं थे उनके, एक बार फिर सारे बच्चे अलग होने का पोजीशन था। तो हम और मेरी वाइफ दोनों इस पे का चर्चा की और बोले कि हम लोग इस बच्चे, इस परिवार को अब टूटने नहीं देना है। तो इसी के तहत फिर हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद कहिए कि थोड़ा टाइम जो लगता है गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है, तो लगभग 25 दिन हम लोगों को लगा और 25 दिन के बाद 18 सितंबर 2019 को हम इन सारे बच्चों को ग्रुप फॉस्टर केयर में ले आए। और बच्चे जब से आए हैं काफी खुश हैं, चूंकि एक साथ सारे बच्चे रह रहे हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारा जो मेहनत है, हम दोनों का जो मेहनत है वो सार्थक है, क्योंकि हमारा अंतिम यही था कि बच्चे खुश नजर आए। इसी बीच क्या हुआ कि टेस्ट तो होता ही रहता है, इसी बीच कोरोना आ गया और कोरोना काल के दौरान जो है स्कूल भी बंद हो गए। स्कूल का बंद हो जाना, बच्चों का रूटीन चेंज हो जाना, तो सारे बच्चे घर में थे और कहिए कि एक प्रकार से सारे बच्चों के हम लोग और करीब आ गए और उनसे काफी जो कुछ भी जानकारी हासिल करना है वो समझे। बच्चे भी हमें ज्यादा समय दिए, हम भी बच्चों को समय दिए, तो देखे कि बच्चे बिल्कुल दिल से जो होता है मम्मी पापा बोलना शुरू किए और काफी मतलब लगा कि हाँ, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनसे माने काफी अटैचमेंट हो गया। और कोरोना काल के दौरान ही टाटा, यूनिसेफ, मिरेकल फाउंडेशन और ज्ञान मार्ग के साझा प्रयास से बच्चों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी की गई और बच्चे इस दौरान काफी चीज सीखे हैं। हर क्षेत्र में पढ़ाई का भी था, सिंगिंग भी था, ड्राइंग भी था, हर तरह से मोरल स्टोरीज भी उन लोगों को बताया जाता था। तो काफी देखे कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ था। इस दौरान हमने कुछ बच्चों को प्लांटेशन भी सिखलाया, योगा भी सिखलाया। बहुत कुछ हम लोग को आता भी नहीं था, लेकिन हम लोग को था कि हम लोग करें क्या, इस दौरान हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग भी बहुत कुछ लर्न किए, बहुत कुछ घर में बैठे खाना पीना भी बनाया और बच्चों के साथ काफी शेयर किए। तो लगा कि हाँ, हमें लगने लगा कि जो मेरा छोटा परिवार था आज मेरा एक लार्ज फैमिली बन गया है। तो आज हमारे पास कुल 9 बच्चे फॉस्टर केयर के तहत हैं और हम सभी एक लार्ज फैमिली की तरह रह रहे हैं। और जहाँ बच्चों की उचित व्यवस्था के लिए हम लोग आज भी हमेशा तैयार रहते हैं कि बच्चों को हर चीज अच्छा कैसे मिले। अब बच्चों को देखिए थोड़ा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हम चाह रहे थे कि बच्चों को अच्छा दूध मिले, तो इसके लिए हम हरियाणा जाकर एक गाय लेकर के आए और आज बच्चों को A2 मिल्क मिलता है और काफी ढंग से मिलता है, बच्चे संतुष्ट हैं। एक हम छोटा सा बागान भी बनाए हुए हैं जहाँ से फल भी आ जाता है। तो जैसा कि संजय सर से भी बात हुई थी, संजय सर भी बताया, आप लोगों के पास साझा किए कि हम फंड नहीं लेते हैं। तो फंड तो नहीं लेते हैं, लेकिन है कि खर्च तो होता है, तो हमारा खर्च को हम कैसे मेंटेन करें, हम हमेशा इस चीज पे प्रयास करते हैं कि हम अपनी क्या क्या व्यवस्था बनाएं ताकि बच्चों को सब चीज मिले और हमें कहीं मांगना नहीं पड़े। इसलिए हमें कहिए कि दूध के लिए हम गाय लेकर चले आए, बागान हमारा हो गया जिससे फल आ जाता है। तो कहिए कि आज ये सारी व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमेशा हम अपना आकलन करते हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि कहीं गलती हमसे न हो। और DCPU और CWC कहिए कि वहाँ से रेगुलर विजिट भी होता है, कोई सजेशंस होता है तो लोग भी बताते हैं कि कहाँ क्या करना है, कैसे अच्छा से काम करना है। तो आज एक छोटा सा स्टोरी हम शेयर किए कि हमारी जर्नी क्या रही और आज हमारी यही चाहत है कि ये फॉस्टर केयर के तहत जितने अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके सहायता तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें एक परिवार मिल जाता है, बच्चों को माता पिता के अलावा उनके रिलेटिव्स मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं। तो आप कभी भी हमारे यहाँ इस चीज में आकर देखेंगे तो बच्चे काफी खुश नजर आएंगे। बस मैं अपनी एक स्टोरी यही साझा करना चाहता था जी। थैंक यू। कुसुमा जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोल दीजिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते कुसुमा जी। जैसा कि सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शिल्पा मैडम ने बहुत अच्छे से बतलाया कि क्या टेक्निकल चीजें होती है, क्या प्रोसीजर होता है फोस्टर केयर चलाने के लिए, ग्रुप फोस्टर केयर चलाने के लिए। और उदयपुर का जैसा हम सुने कि 24 इंडिविजुअल फोस्टर केयर चल रहा, बहुत हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। हम लोग भी चाहते हैं कि हजारीबाग में इस तरह का हो और भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं। बहुत सारी फैमिली आती है हमारे पास, जैसे वो ग्रुप फोस्टर केयर समझती नहीं है कि क्या है, तो वो अडॉप्शन के लिए हमारे पास आ जाती है।
तो हम लोग उन लोगों को बतलाते हैं कि यहाँ से एडॉप्शन नहीं, लेकिन आप फोस्टर केयर जरूर चालू कर सकते हैं, जिसमें आपका जो बच्चे रखने का जो एक इच्छा है कि हम एक बच्चे को रखें, पालन पोषण करें, तो हम लोग अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को प्रेरित करें कि वो भी कुछ बच्चे हैं ऐसे अभी भी चिन्हित हैं कि उनको अगर फोस्टर केयर का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता। उसके लिए हम लोग लगे रहते हैं और बतलाते रहते हैं सबको कि क्या है, कैसे है, क्या करना है। और बात रहा बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस, तो बच्चों के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग से ही हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि बच्चों को जितना हो सके अपना बेस्ट दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह का कोई कमी नहीं होने दें। उन लोगों के जीवन में जो भी कमी रह गई, चाहे परिवार का, चाहे किसी भी चीज का, खाना या कपड़ा का शौक जो भी है, वो सारे शौक हम लोग मतलब अपनी तरफ से हम लोग खुद से जितना होता है वो सारा हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। और ईश्वर से यही चाहते हैं कि वो हम लोग को भी इस तरह का और भी दे हिम्मत कि हम लोग और भी बच्चों का सेवा कर सके, उनका सहयोग कर सके, उनके लिए और अच्छा कर सके। तो यही है। और बाकी सभी लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Thank you, Ashish ji and Kusuma ji, for sharing your experiences, your journey of establishing group foster care home, and your experience of running and sustaining it so well. Also, how you make efforts to make others aware of group foster care home, and also thanks a lot for highlighting the need for group foster care by sharing the case story. So now we can move on to the question and answers. We have about 10 minutes with us. So these are the questions which are shared so far. The first question is, does the CWC have the financial capacity to hire external agencies? Dr. Shilpa, would you like to answer this? Yes. No, I don't think so that CWC has the financial capacity to hire external agencies. This is what I have mentioned in my talk also, ki whosoever the agency which is working in the area of child protection and willing to support, provide the technical support, I think they can apply. I mean, they can show their willingness and they can work, but CWC doesn't have any financial capacity. The next question, is it already answered? Is that the answer to the next question? Can you share the criteria for selecting foster parents, like age, family status, economics, etc.? Yes, as I have mentioned कि जैसे मैंने बताया था कि फॉस्टर पेरेंट्स के सिलेक्शन के लिए जे रूल्स में कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, और DCPU को बेसिकली उन क्राइटेरियाज को देखते हुए उनका एप्लीकेशन देना है। तो बेसिकली अगर जे रूल्स की बात करूं तो एज लाइक 35 प्लस होने हैं, एंड फैमिली स्टेटस मतलब वो बेसिकली ITR देखते हैं। देयर इज नो सच, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं बना रखा है, बट दे हैव टू शेयर द लाइक बैंक डिटेल्स एंड ITR। सो फैमिली खुद स्टेबल होनी चाहिए सो दैट कि वो बच्चे का अपब्रिंगिंग कर सके, परवरिश कर सके। एंड जैसे कि अभी तो कुछ प्रावधान ऐसे भी आए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो रूल्स बने हैं, तो उसमें बच्चों के लिए जैसे संजय सर ने भी बताया कि जैसे 2000 रुपए प्रति बच्चा देने का प्रावधान है। तो इस तरह से हर एक स्टेट ने जो रूल्स बनाए हैं उसमें भी कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस दिए गए हैं, इवन फॉर द ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए भी। Great, thank you. Amanda, can I add something? Please, Devashish. इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो हमको क्योंकि जैसे शिल्पा जी ने बोला कि एक अपना जे रूल है जो 2016 में आया, इसके अलावा नेशनल फॉस्टर केयर गाइडलाइन भी है 2016 में जो आई है, जो डिटेल में क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करती है। बट अगर पर्टिकुलर कोई अपने स्टेट के लिए बात कर रहा है या उसमें काम करना चाहता है तो उसको एक बार मेरी सजेशन ये कि वो रेफर करे अपने स्टेट की गाइडलाइन को, या उसके यहाँ कोई रूल है या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है। जैसे मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ऑर्डर पर ये फॉस्टर केयर प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर रूल है, वहां पर भी बहुत
उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी डिफरेंसेस हैं, और अगर हम झारखंड को देखें तो वहां पे भी इन तीनों में डिफरेंसेस नजर आते हैं, चाहे वो एज को लेकर के हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के हो। तो इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक तो हम, जैसे शिल्पा जी ने बोला कि जेजे रूल को रेफर कर सकते हैं, दूसरा नेशनल फॉस्टर केयर गाइडलाइन को रेफर कर सकते हैं, तीसरा हमें पता करना होगा कि हमारे स्टेट में क्या इस पर कोई गाइडलाइन बनी है, जैसे मध्य प्रदेश में गाइडलाइन बनी हुई है ना, ऐसे बहुत से स्टेट में गाइडलाइन बनी, कहीं रूल बना, कहीं गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो वो हमें एक बार रेफर करना पड़ेगा। और अगर पर्टिकुलर कोई इस पर अपने स्टेट के लिए जानना चाहता है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं बाद में, कि वो उसको डिटेल मिल सके कि उसके स्टेट में पर्टिकुलर क्या कोई रूल गाइडलाइन या जियो है, या फिर अगर है तो उसमें इसकी डिटेल्स क्या है। थैंक यू। Thank you, Devashish, for adding to this. So the last question is, if children are unhappy with foster family, whom can they connect to? So I think here we are also looking at the monitoring and evaluation aspect of foster care. So among the speakers, anyone could answer this? So I would add into this. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब फॉस्टर केयर होता है तो प्लेसमेंट के बाद में मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन भी होता है, और ये मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का क्राइटेरिया इसीलिए रखा गया है ताकि हम देख पाए पहला वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा उस परिवार में खुश है या नहीं, अच्छे से समायोजित हो गया है या नहीं, प्रॉपर एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं, या कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो CWC का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनता ही है कि वो मंथली इसमें मॉनिटरिंग करें, और अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी साथ में वर्क कर रही है तो वो भी मॉनिटरिंग कर सकती है। और मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ यही देखना है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, तो बच्चा वहां पर कह सकता है, CWC को कह सकता है, और कोई अगर मॉनिटरिंग एजेंसी आ रही है उन्हें भी बता सकता है। और कई बार क्या होता है मॉनिटरिंग में, हम ये भी होते हैं कि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ करके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी हम पता करने की कोशिश करते हैं बच्चे के चेहरे से कि बच्चा कितना खुश है या उसे कोई प्रॉब्लम लग रही है नहीं लग रही है, तो उसे तुरंत CWC फिर एड्रेस किया जाता है CWC द्वारा। Great. जी। Anything you would like to add, Devashish, or any other speaker? Okay, so if we have any other question, I think we can remove the screen. Yeah. So we have any other question? Hi, I'm Pratibha from CBGA. I have a question to all the panelists. So हमारा एक एक्सपीरियंस ये रहा, DCPO बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग बात किए, एंड दे हैव सेड that 10 lakh per district जो that is comes for sponsorship and foster care fund, उन लोगों को मिलते ही नहीं है, या at least last 4-5 years they are not getting that fund. If that fund is not coming, then how this foster care actually is happening at the ground level? This is one of the question. And second is, the new Mission Vatsalya guideline is no more talking about this 10 lakh per district, but it's talking about 4,000 per child. So इसके लिए क्या हो रहा है? Is this what DCPOs are thinking? Is this better than the previous 10 lakh per district, or is it will make the system more challenging because more administrative procedure is now involved? They need to prepare district action plans, etc., and they need to demand the resources from state. So ये दोनों चीज के बारे में थोड़ा जानना है मुझे. Thanks. Thank you, Pratibha. So, Devashish, would you like to answer? Yeah. So, Pratibha, आप किस स्टेट से हैं? दिल्ली से हूँ मैं. दिल्ली से. ओके. तो देखिए, एक तो जो अभी वात्सल्य स्कीम आ रही, इससे पहले ICPS स्कीम थी, और उसके बाद जो है ICDS के अंडर में लाकर के इसको एक सर्विसेज में रूप में बना दिया गया, और अभी आपने जैसे मेंशन किया वात्सल्य स्कीम के माध्यम से इसको आगे ले जाया जा रहा है. तो हर जिले में एक SFCC कमेटी की गठन की बात की गई थी ICPS में, और उसमें कहा गया था कि SFCC के माध्यम से 10 लाख रुपए पर जिले को मिलेगा, और उसके आगे किनशिप केयर या स्पॉन्सरशिप के माध्यम से बच्चों की मदद की जाएगी. तो ये जो 10 लाख का फंड ICPS इसका मेंशन था, और मतलब मेंशन है भी, अभी मतलब चेंज होने वाला है, इसलिए मैं था वर्ड यूज कर रहा हूँ. तो
उसमें ये था प्रावधान की SFCSC इसको देखेगी कि जो उसको क्योंकि मुझे पता है हर राज्य में, आप भी जानती हैं, हर राज्य में अलॉटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम उतना इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते तो अगले साल उसका फंड कम हो जाता है। ये कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहा और देखा, इस चीज को बहुत करीब से देखा हूँ कि कहीं कहीं तो पैसा पूरा मिलता है, कहीं कहीं कम मिलता है। तो जो 10 लाख रुपए का प्रावधान की बात की गई है, जो SFCSC के माध्यम से हम जिले में बच्चों को 2000 पर चाइल्ड पर मंथ हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहीं कहीं कम है, कहीं पूरा आ रहा है। बट ये है कि अगर हम फॉस्टर केयर के हिसाब से देखें तो यही फंड वहां पे इसी फंड में फॉस्टर केयर चिल्ड्रन के लिए भी पैसा इस्तेमाल होता है। तो बट ये है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है ये चीज कि कहीं पर पूरा फंड मिल रहा है, कहीं पे कम, और कहीं कहीं किसी जिले में आपको मैं बताऊं कि उनकी रिक्वायरमेंट अगर अच्छी रहती है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इवन झारखंड के मैं एग्जांपल दूं तो वहां पे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये पैसा और ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट तब से अलॉट करके इसको दिया गया कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की इसमें हेल्प कर सके। Great. Thank you, Devashish. We have any other question? Okay, Devashish, so as we were planning this discussion, we also talked about the emotional aspects of foster care, and because you said it's a temporary arrangement, so if you could, share a bit about that. अगर ओवरऑल हम लोग देखें सारी स्कीम्स को, सारे प्रोग्राम को और बच्चे की रिक्वायरमेंट, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके कंपैरिजन सामने जो है क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें बच्चे की नीड के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जब उसको हम बेस्ट इंटरेस्ट उसको इंश्योर करने की बात करते हैं तो अलग अलग सर्विसेज आती हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने फॉस्टर केयर को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया। मैं नहीं कह सकता कि हमने बहुत डिटेल में डेप्थ में गए, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि कई बार तो सिर्फ फॉस्टर केयर पे हमें 2 से 3 दिन लगते हैं पूरी चीजों को डिस्कस करने में, और ये हम समझते भी हैं कि सीधे फॉस्टर केयर पे जब हम बात करते हैं तो हमारा पिछला जो हमारा नॉलेज है चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के, वो अगर उसमें कहीं कुछ चीजें गैप होती तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बट हमने बहुत ही कम समय में हम सब ने कोशिश की कि आपको एक पैकेज के रूप में हम इसको समझा सकें, बता सकें, और कोशिश की हमने, और इस तरह की पहली कोशिश है। मैं जहां तक जान रहा हूं कि हम लोगों ने शायद इतने कम समय में इतने लोगों ने इतनी बातें कवर नहीं की, और वो हमने कोशिश की है। और बट उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपको फॉस्टर केयर को लेकर के जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट है, उसको जो हम इंश्योर करने की बात करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, तो वहां पर फॉस्टर केयर की जो भूमिका है, जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको हम थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी होगी। और हमने जैसे देखा कि शिल्पा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनका जो एक्सपीरियंस था कि इंडिविजुअल फॉस्टर केयर के माध्यम से कैसे बच्चों का वर्तमान और भविष्य को इंश्योर किया जा रहा है। आशीष जी को जैसे हमने बात सुनी, संजय जी की हमने बात सुनी, कैसे फॉस्टर केयर, ग्रुप फॉस्टर केयर के माध्यम से उन्होंने, जैसे मैं थोड़ा सा और टाइम लेकर इसको जिक्र करूंगा कि कैसे 5 भाई बहनों को एक मौका दिया इस सर्विस के माध्यम से कि वो साथ में रह सके। मैं हमेशा सवाल करता हूं कि अगर ग्रुप फॉस्टर केयर नहीं होता तो क्या ये जो 5 बच्चे जो आशीष जी आज अपने साथ 5 भाई बहन को रख रहे हैं, इनको हम किस सर्विस में रखते, इनको हम कहाँ रखते, इनको हम अडॉप्शन में भेजते तो कोई एक व्यक्ति 5 बच्चों को अडॉप्शन में नहीं लेता। एक बात। दूसरी चीज, इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी बहुत प्रॉपर्टी है काफी, तो ऐसे बहुत से बच्चे जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और वो सिबलिंग्स हैं 2, 4, 5, तो अगर हम उनको अडॉप्शन के लिए देखेंगे तो प्रॉपर्टी के राइट से भी वो हट जाते हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल होते हैं ऑन ग्राउंड, जब हम देखते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं, और उसको जब हम देखते हैं तो हर बच्चे की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, हर बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट जब हम फुलफिल करने चलते हैं तो अलग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सीसीए की अपनी इंपॉर्टेंस है, और एडॉप्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। और जो अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था, आशीष जी ने जिक्र किया कि अगर से 5 बच्चे हमारे सामने आते हैं तो हमें फिर ग्रुप फॉस्टर केयर ही नजर वहां पर आता है, कि ग्रुप फॉस्टर केयर जैसी सर्विसेज ही हमें नजर आती है कि जहां पर हम इन बच्चों को जो पहले ऑलरेडी ट्रॉमा हो चुका है, अपने फादर से अलग होने का, अपने मदर से अलग होने का, अपने रिलेटिव से अलग होने का, तो जो ट्रॉमा उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कई चरणों में झेला है, देखा है, तो उसको हम और ना बढ़ाएं,
हम हमेशा ये कहते हैं कि जो नेचुरली जो प्रॉब्लम आई, नेचुरली जो उन्होंने चीजें देखी या फेस की, ठीक है, वो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं था। बट जब बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं, जिनकी जानकारी हमें हो चुकी है, तो अब वहां से हम ऐसी सर्विस का फैसिलिटी को हम प्रोवाइड करें कि बच्चे कम से कम अब कोई और ट्रॉमा ना हो, अब वो कहीं सेपरेट ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि जिससे हमने समझा कि ग्रुप फॉस्टर केयर की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम सिबलिंग्स को एक साथ रखने के लिए इंश्योर कर सकते हैं। शिल्पा जी के एग्जाम्पल से ये हम देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चे के लिए जो कितनी बुरी मतलब उसका जो उसका स्टेटस था, जो उसका कंडीशन था, कितना ही हमें कई बार सुन के हमें बहुत दुख होता है कि ऐसे किसी बच्चे के साथ ना हो। और जब ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं तो उनको पहले मेंटली कैसे उनको हम कैसे मजबूत बनाएं, कैसे उनको हम जो उनकी गलत आदतें हैं, गलत हैबिट्स, उनको उससे दूर करें, और कैसे फिर प्रिपेयर करें दूसरी फैमिली में जाने के लिए। और जब फैमिली में जब वो जाएं तो वहां पर भी, क्योंकि कई बार ये होता है, मैं अक्सर लोगों से मिलता बात करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि फॉस्टर केयर प्रोग्राम में जब प्लेसमेंट हो जाता है तो वहां पे वो रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्लेसमेंट होना तो हमारे काम की अब शुरुआत है, उससे पहले की जो चीजें थी वो तो ठीक थी, वो तो मेहनत थी, लेकिन जब प्लेसमेंट होता है ना, असली चैलेंज वहां से शुरू होता है। ये आशीष जी और शिल्पा जी से आप लोग कभी बात कर सकते हो, डिटेल बता सकते हैं कि असली चैलेंज तो वहां शुरू होता है। और यहीं पर मतलब मैं एक चीज थोड़ा जिक्र करूँ, कुछ क्वेश्चंस भी थे कि कहाँ फॉस्टर केयर प्रोग्राम किस किस स्टेट में हो रहा है। तो मैं मतलब पर्टिकुलर किसी की ये नहीं करूँगी किसी का प्रोग्राम क्यों फेल हुआ, क्या हुआ, बट बहुत से फॉस्टर केयर प्रोग्राम चले और फेल हो गए। और जब उसको हमने करीब से देखा तो 2-3 बातें ही उसमें हम समझ में आई कि वहाँ प्रॉपर काउंसलिंग की कमी थी, और जो एक जो मैचिंग के समय एक जो हमें वहाँ पर सपोर्ट देना चाहिए था बच्चे को और पेरेंट्स को, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा जो एटीट्यूड होता है कि हम प्लेसमेंट करते हैं उसका हम समझते हैं कि हमारा काम हो गया है, ये हमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमारा काम वहां से शुरू होता है, और वहां पर लगातार सुपरवाइज, मैं ये नहीं कहूँगा सुपरवाइज करिए आप फैमिली को या बच्चे को, बट वहां पर सपोर्ट सिस्टम एक प्रोवाइड करिए, एक सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करिए। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। और इससे हमारे जो बच्चे हैं जो CNCP कैटेगरी में आ गए हैं और जो CCI में रहने के लिए मजबूर, अपने घरों से परिवार वालों से रहने के लिए दूर रहने के लिए मजबूर हैं, उनको हम एक लविंग और एक अच्छा परिवार दे सकते हैं। थैंक यू। There's someone's hand raised. Yes. हाय गुड इवनिंग, मैं विजेता महेंद्र हूँ और मैं प्रतिभा, जिन्होंने अभी एक सवाल पूछा था, उन्हीं के साथ सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी न्यू दिल्ली में काम करती हूँ। तो अभी हम लोगों का एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर ही प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 6 स्टेट्स में किस तरह से स्पेशली फैमिली बेस्ड ऑल्टरनेटिव केयर का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके ऊपर काम किया है। और ऑन द ग्राउंड भी हमने जाके देखा है कि कैसे होता है। तो अपार्ट फ्रॉम केरला, हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि बाकी स्टेट्स में बिल्कुल बहुत ही कम अपटेक है या फिर ना के बराबर अपटेक है फॉस्टर केयर का। तो लाइक मैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जिन लोग जैसे कि CWC मेंबर और DCPO वगैरह, तो मैं जानना चाहती थी कि विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाउ व्हाट डू दे सजेस्ट कि कैसे इसका अवेयरनेस बढ़ाया जाए और लोगों में इसका अपटेक बढ़ाया जाए, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ही नहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफी कम है। और जैसा सुनने में आता है कि अडॉप्शन के ही ऊपर लोगों का जोर ज्यादा है, तो थोड़ा इसके ऊपर लाइट डालें। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका जैसा अनुभव है वैसा मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे अगर मैं राजस्थान के टर्म्स में देखूं कि हालांकि आपकी बात सही है कि इनिशियल जब हमने भी जब शुरुआत करी थी तब फॉस्टर केयर के कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोग जानते थे, और आज भी मैं कहती हूँ कि अभी इसकी अवेयरनेस हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग इस विषय के बारे में जानते नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं समझते हैं। तो जब हमने भी जब इधर राजस्थान में शुरुआत करी थी तो डिपार्टमेंट्स ने कई सारी मीटिंग्स करी थी कि इसको कैसे किया जाए, इसके अवेयरनेस पे कैसे काम किया जाए, किस तरीके के ICs बनाए जाए।
या फिर अगर कोई एजेंसी साथ में मिलकर के काम करना चाह रही है तो वो क्या एफर्ट्स कर रही है कि जैसे मैंने अपने सेशन के दौरान भी बताया कि अगर ये प्लेसमेंट्स हुए हैं तो इससे पहले नंबर ऑफ इंक्वायरीज आई, मतलब कई लाख लोगों तक हम पहुंचे तो कुछ हजारों इंक्वायरीज आती हैं, फिर हजारों इंक्वायरीज में से कुछ फैमिली जो इंक्वायरीज हैं वो विलिंगनेस शो करती है, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे कट ऑफ हो जाती है, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि हमें नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएंगी या उनका इंटेंशन ये नहीं है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये है कि सही आपने कहा कि अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो हम भी यहाँ पर विभाग के साथ मिलकर के कोशिश करते हैं कि कैसे करें, लेकिन जैसे विभाग इंडिविजुअल लेवल पे भी करता है। तो जैसे अगर कोई एडॉप्शन एजेंसी में कोई फैमिली आती है एडॉप्शन के बारे में, तो उसे फॉस्टर केयर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया जाता है। तो ये प्रैक्टिस राजस्थान के टर्म्स में मैंने खुद ने देखी है, इसलिए मैं आपको वो अनुभव शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज तो जैसे अगर हमने पेपर में ऐड दिया या कोई रेडियो जिंगल किया या कोई बैनर्स ब्रोशर्स बनाए वो सर्कुलेट किए या मैसेजिंग के थ्रू फोन पे मैसेजिंग के थ्रू सर्कुलेट किया, तो मतलब अपनी बात स्प्रेड करनी जरूरी है। उसके बाद में इंक्वायरीज आएगी और वो ओरिएंट करना जरूरी है। और मुझे लगता है फॉस्टर केयर की सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो ओरिएंटेशन है, कि आप फैमिली को किस तरह से ओरिएंट करते हो और कैसे दोनों की सिग्निफिकेंस बताते हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिली एडॉप्शन के पर्सपेक्टिव से ही आपके पास में आती है, वो कहते हैं कि हमें बच्चा गोद ही लेना है, लेकिन जब हम फॉस्टर केयर के बारे में भी उनको बताते हैं तो कहीं फिर उनका जो ओपिनियन है वो बदलता है, हालांकि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत होती है। देवाशीष, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? थैंक यू मैम। या एक्चुअली जब हम अपने जिले में फॉस्टर केयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं या इसको अपने जिले में इसको लागू करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए ना था, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस पे काम करनी चाहिए। और हर जिले के अपने अपने अवेयरनेस के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली का अलग हो सकता है, झारखंड का अलग हो सकता है, यूपी का अलग हो सकता है। तो वो एक पहले मैपिंग करनी चाहिए। जैसे हम लोग जब किसी स्टेट में जब सजेशन देते हैं फॉस्टर केयर प्रोग्राम शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा सजेशन होता है कि मैपिंग करिए कि आपके एरिया में कैसे आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग माध्यमों के हिसाब से आपको देखना होता है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे और फैमिलीज कहाँ पे मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्लब के माध्यम से भी चीजें होती हैं। आप अपने जिले के रोटरी क्लब या दूसरे लायंस क्लब के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके जब सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहां पर आप जाकर के अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाकर के फॉस्टर केयर को लेकर के अपनी बात रख सकता है। या फिर जैसे ये IVF सेंटर्स होते हैं जो बच्चों के लिए वहां पर कोशिश कर रहे होते हैं पेरेंट्स, वहां पर भी सेशंस लिए जाते हैं। जैसे ऐसे पेरेंट्स जिनको कई सालों से कोशिश की और बच्चे अपने नहीं हो रहे हैं और वो किसी कारणवश से एडॉप्शन में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो फॉस्टर केयर प्रोग्राम को उनकी जानकारी दी जा सकती है। तो शुरू में थोड़ा मेहनत होती है, ये हम सभी जानते हैं, शुरू में बहुत मेहनत होती है, बट एक बार जब ये स्प्रेड हो जाता है और 1-2 प्लेसमेंट हो जाते हैं ना, फिर माउथ कैंपेन के माध्यम से हमें फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, तो वो बाद में दिक्कत नहीं आती शुरू में। बट हाँ, 1 या 2 साल अवेयरनेस बहुत जबरदस्त काम करने की जरूरत होती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको एडॉप्शन और फॉस्टर केयर में डिफरेंस को क्लियर करना है। ये मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, और दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू। जब भी हम बात करें तो फॉस्टर केयर एडॉप्शन को दोनों को हम वहाँ पर डिफरेंसेस को भी क्लियर करें। कई बार वो क्या पेरेंट्स आते हैं वो फॉस्टर केयर को एडॉप्शन समझ के बात करते हैं और वो उनको लगता है कि जैसे एडॉप्शन बच्चा हमेशा के लिए आ जाता है वैसे फॉस्टर केयर में भी हमारे पास हमेशा आ जाएगा। तो इस चीज का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम उनसे बात करें तो हम ये डिफरेंसेस को देखें। और मैं एक छोटा सा बात कहूंगा कि जब उदयपुर में हम इसको प्रोग्राम को चलाते हैं, वहां पर हमने एक सिस्टम बना रखा कि हम रिटर्न में जो है उनसे हर पेरेंट्स से साइन करा लेते हैं बिफोर प्लेसमेंट कि वो फॉस्टर केयर एडॉप्शन के डिफरेंसेस को समझ रहे हैं, उसमें जो जो पॉइंट्स और क्लॉज है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं और उसको पढ़ के उसको सहमत होते हुए उस पर साइन करते हैं कि मैं कभी बच्चे का नाम नहीं बदल सकता, मैं कोई लीगल राइट नहीं है मेरे पास, और ये एडॉप्शन से बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है, और कभी भी CWC अगर इस बच्चे को इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का वापस भेजने का आदेश जारी करेगी तो मैं अपनी इच्छा से इसको वापस बच्चे को दूंगा। तो ये मतलब ये करना पड़ता है,
क्योंकि आप नहीं जानते कि जो सामने वाला पेरेंट्स आ रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका एजेंडा क्या है बच्चा लेने का। तो हमें स्क्रीनिंग के समय पे तो वो फिल्टर कर देना चाहिए, और जब वो फिल्टर हो जाए उसके बाद भी अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं आपको जो आप फाइनलाइज कर रहे हैं जिनको, तो प्लीज इस तरह का रिटर्न में लेना और उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा 10 साल का, तो लगातार करना पड़ता है हमें, और इसी वजह से फिर चीजें बहुत क्लियर रहती हैं पेरेंट्स में भी और स्टेक होल्डर्स में भी रहती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं बस एक छोटा सा बात और पूछना चाहती हूँ कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा आप बता सकते हैं कि राजस्थान में कितने बच्चे हैं फोस्टर केयर में, एंड अगर किसी और स्टेट का भी बता सकते हैं कि कितने बच्चे एक्चुअली फोस्टर केयर में प्लेस हुए हैं। देखिए ऐसे तो बताना थोड़ा मुश्किल है, बट जैसा कि शिल्पा जी ने बोला कि वहाँ पर करीब 20 बच्चे इंडिविजुअल फॉस्टर केयर में हैं, और अभी 24 या, और अभी जैसे कि कुछ समय पहले ही वहाँ पर गोराधाय स्कीम अभी लॉन्च हुई जो ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम है राजस्थान में। तो अभी हर जिले में एक ग्रुप फॉस्टर केयर स्टेब्लिश कर दिया गया है। तो कहीं पे 2 बच्चे, कहीं 4 बच्चे, ऐसे ग्रुप फॉस्टर केयर में बहुत से बच्चे अभी राजस्थान में रहना शुरू किए हैं। तो अभी वो पूरा कलेक्टिव वे में हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि राजस्थान में है, झारखंड में है, यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और उड़ीसा में कुछ है, केरल में है, तो है। बट एग्जैक्ट डेटा अभी ऐसा हम प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप कर पाए कि जहां पर हम एग्जैक्टली बता सके कि कहाँ पर कितने बच्चे फॉस्टर केयर में, कितने उसमें भी कितने ग्रुप फॉस्टर केयर में, कितने इंडिविजुअल फॉस्टर केयर में। Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, Devashish. Thank you, Dr. Shilpa, for clarifying these aspects. Any other question, or maybe we could close the session? So if anyone wishes to ask anything more about foster care, or you wish us to organize another session, a more detailed session on foster care, you can write to us at IACN Secretariat at iscn.in. The address is given. So with this, we end this very stimulating session on foster care. Thank you all for joining and making this webinar very engaging. Many thanks to our speakers for sharing their rich experiences, case narratives, and showing us how foster care works within the existing legal framework and realities on the ground. Thank you once again.